السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں شفاعت علی. خواتین و حضرات، کل کراچی میں دھواں دھار بارش ہوئی اور ایسی بارش ہم نے اپنی یادداشت میں ابھی تک کراچی میں نہیں دیکھی تھی جیسی بارش کل ہوئی ہے. کراچی کی اس بارش کے بعد جو صورتحال آپ کل سارا دن دیکھتے رہے ہیں، ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. وہ لو پریشر، وہ ڈپریشن جو کہ یہ بارشیں برسانے کا سبب بن رہا ہے، وہ ابھی بھی کراچی کے اوپر موجود ہے پریسائسلی، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. بالکل شفاعت، کراچی میں کل مسلسل بارش ہوئی ہے. انفیکٹ آج صبح تک مسلسل کراچی میں بارش ہو رہی ہے، اور ابھی جب میں آپ سے بات بھی کر رہی ہوں تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر بارش شروع ہو گئی ہے. پہلے جب بھی کراچی میں بارش پڑتی تھی تو آپ کو خوف ہوتا تھا کہ لائٹ چلی جائے گی، پانی تو کھڑا ہوگا ہی اور کچرا آپ کے گھروں میں انٹر ہو جائے گا. لیکن اب جو ایک اور خوف ایڈ ہو چکا ہے شفاعت، وہ یہ ہے کہ اب لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ کل کس طریقے سے گلستان جوہر میں جو وہاں جو لینڈ سلائڈنگ ہم نے واقعہ دیکھا، اور اس کے بعد وہاں اس کے تلے تقریباً 20 گاڑیاں جو ہیں وہ دب گئی ہیں. تو اب صورتحال بہت زیادہ خوفناک ہوتی جا رہی ہے. اور جیسے کل ہی ہم بات کر رہے تھے کہ تھرسڈے تک یہ بارشوں کا سلسلہ ہے، لیکن یہ آگے تک 2 دن بھی جا سکتا ہے. سو اللہ خیری کرے. جناب بہت کچھ ہے مزید بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، مگر سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز. تو شو کے آغاز میں سب سے پہلے کراچی میں ہونے والی حالیہ بارشوں کی جو تباہی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے کہ ابھی کرنٹلی سچویشن کیا ہے. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مانسون کا سپیل پیر سے شروع ہوا تھا، جو اب تک وقفے وقفے سے جاری ہے. اور کراچی کے بعض حصوں میں تو 7 سے 8 گھنٹے کی بارش کا 36 برس کا پرانا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے. سڑکوں اور گلیوں میں جمع ہونے کے ساتھ ساتھ پانی گھروں اور اسپتالوں میں بھی اب داخل ہو گیا ہے. نکاسی کا انتظام نہ ہونے کے باعث شہری گھنٹوں سڑکوں پر پھنسے رہے. درجنوں کی تعداد میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں خراب ہو گئیں، جبکہ گھروں کے سامنے کھڑی گاڑیاں بھی ڈوب گئیں. شارع فیصل، راشد ناز روڈ، یونیورسٹی روڈ سمیت کئی شاہراہیں جگہ جگہ سے تالابوں کا نہیں بلکہ جھیلوں کا منظر پیش کر رہی ہیں. اسی طرح شہر کی تمام بڑی مارکیٹس میں بھی پانی داخل ہوا اور دکانوں میں رکھا ہوا کروڑوں روپے کا مال ضائع ہوا. اسی صورتحال میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی فل ٹائم ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ہمیں آن گراؤنڈ نظر آئے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ انہوں نے بڑے لانگ بوٹ بھی پہنے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب کی بھی کچھ یاد تازہ ہوئی. ساتھ ہی جو ابھی حال ہی میں مکمل ہوا پیپل اسکوائر، اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ پانی موجود تھا. بالکل شفاعت، اور یہاں پانی روکنے کے لیے بجری سے بھری بوریاں بھی جو ہے وہ رکھنا پڑی. اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر سرجانی ٹاؤن کی اگر ہم بات کریں تو سرجانی ٹاؤن کے یوسف کوٹ میں جہاں گزشتہ بارش کا پانی نہ نکالا جا سکا، مزید بارش کے بعد وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے. علاقے کی 80% آبادی اپنے گھروں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات پر اب منتقل ہو چکی ہے. پانی ایک دم چھوٹا ہے، بارش کا پانی نہیں تھا، آگے سے آتا. میرا حکومت سے التجا ہے کہ ہماری طرف نالے بنائے جائے تو پانی کی نکاسی کا نظام کیا جائے. کراچی میں کیا صورتحال آپ نے دیکھی ہو شفاعت؟ سرجانی ٹاؤن میں اسپیشلی جو ہم نے دیکھا ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے، وہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر لوگوں نے نالے پہ دکانیں بھی بنائی ہیں. صرف سرجانی ٹاؤن نہیں، کراچی کے اطراف میں موجود سینکڑوں گوٹ اور دیہات ایسے ہیں جن میں اس وقت سیلابی ریلا گزرا ہے، اور ان میں سے لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کے گھر جو سیلابی ریلا ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں. ہم اپنے نمائندگان سے جانتے ہیں جناب کہ کراچی میں اس وقت کیا صورتحال ہے. ہنا دیدار اور افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ہنا آپ کی طرف چلتے ہیں، بتائیے گا کہاں موجود ہیں آپ، کیا صورتحال ہے، اور اس وقت کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی موجود ہے؟ بالکل شفاعت، میں اس وقت گولڈن مارکیٹ کے اطراف میں موجود ہوں، اور کل کے منظر تو ہم نے خود دیکھا اور اپنے جو ناظرین ہیں ان کو بھی دکھایا کہ برسات ہوئی تو کراچی پھر ڈوب چکا تھا. یہاں پر میں یہ بزنس پوائنٹ جو ہے گولڈن مارکیٹ، یہاں پر بیشتر دکانیں ہیں، لیکن دکاندار تو یہاں پر آئے ہیں لیکن دکان کھول نہ سکے. اگر میں اپنے عقب میں آپ کو صورتحال دکھاؤں تو یہ ایم اے جناح روڈ، یہ پورا روڈ ہے، یہاں پر
इवन दुकानों में भी पानी जा रहा है, शहरी परेशान है, मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मेरे राइट साइड पर भी ये गली जा रही है बोल्टन मार्केट के जानिब, अगर मेरे कैमरामैन हनीफ दिखा सक रहे हैं जूम करके, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियों को गुजरना भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार हुए हुए लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं पानी से चलकर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब बारिश थम चुकी है, दुकानदार भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम आएंगे। सही, बोल्टन मार्केट में हमारी नुमाइंदा हिना दीदार मौजूद है और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर एग्जैक्टली पानी कितना खड़ा हुआ है। और अब हम अपने नुमाइंदे अफसर खान की जानिब जाते हैं और उनसे पूछेंगे कि वो एग्जैक्टली कौन से इलाके में मौजूद और यहाँ पर वो पानी की सूरत हाल क्या देख रहे हैं। अफसल, ये बताएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पानी की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, ये तो आपको पता है कि कराची के अंदर होने वाली बारिश के बाद मलीर नदी के अंदर जो पानी की सतह है वो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। और मैं इस वक्त हूँ कोरंगी कॉजवे पर। आप देख सकते हैं कि ये मलीर नदी है, किसी झील या नहर या दरिया का मंजर पेश कर रही है और मुसलसल पानी जो है वो कोरंगी कॉजवे के ऊपर आ रहा है। और जिसकी वजह से ये जो शारा है उसमें और जो नदी है उसमें जो शनाख्त है वो करना नामुमकिन हो रहा है। और मुसलसल पानी आने की वजह से यहाँ पर जो पेड़ थे या बिजली के खंभे थे वो टूट फूट का शिकार हो गए हैं। पूरी शाहरा टूट फूट का शिकार है। गो के ये शाहरा ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो बंद कर दी है। लोगों को इस पर नकलो हरकत की इजाज़त नहीं है, ट्रैफिक के लिए शाहरा बंद है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस या डिस्ट्रिक्ट पुलिस का अमला मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर इस सारी सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करने के लिए आ रहे हैं। ये हालांकि ख़तरनाक है क्योंकि गुज़िश्ता शब ही जो है इस नदी के अंदर तकरीबन 6 अफराद, वजह से तो बहुत सारी जगहों का ज़मीनी राब्ता भी आपस में मुनक़िता हो गया था। जी बिल्कुल, इस शारा के बंद हो जाने की वजह से जो है वो बलोच कॉलोनी से अगर कोरंगी सनती एरिया की जानिब आने जाने वाली जो सड़क है वो राब्ता बिल्कुल मुनक़ते है। और उसके अलावा जो ट्रैफिक आ रहा है इस वक्त उसे कयूमाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ मोड़ा जा रहा है, या फिर जो कोरंगी एरिया से ट्रैफिक आ रहा है उसे जाम सादी ब्रिज की जानिब जो है वो मोड़ा जा रहा है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर। और मुसलसल पानी का जो बहाव है वो मुसलसल तेज़ होता चला जा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो सड़क है वो मुकम्मल तबाह हाल हो चुकी है। सड़क पर अभी भी जगह जगह जो है वो बिजली की तारें हैं, खंबे मौजूद हैं जो टूट फूट का शिकार हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल यहाँ पर देखने में आ रही है। और लोगों को यहाँ पर सफ़र करने से तो मना किया गया है, लेकिन इस शारा के बंद नदी की सूरत हाल आपने बताई और मलीर नदी की ये सूरत हाल जो आप बता रहे हैं, कुछ तस्वीर हमने देखी है जिनमें सन 52 में मलीर नदी में इतना पानी देखा गया था। उसके बाद से बहुत कम लोगों ने मलीर नदी में, और ख़ासतौर पर जो लियारी एक्सप्रेस वे है उसके बीच में हमने देखा कि जिस तरह से पानी का लेवल ऊपर उठा था। एक दफ़ा वापस चलते हैं हिना आपके पास और ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है बोल्टन मार्केट की और इसके इर्द गिर्द जितनी मार्केट्स हैं, इधर इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी मार्केट्स हैं, कपड़े की बहुत सारी मार्केट्स हैं, तो आज क्या कारोबार खुलने की कोई उम्मीद है? बिल्कुल शफात, जब हम आए तो हमने सूरत हाल यही देखी कि बोल्टन मार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यहाँ के कंपैरेटिवली स्थिति बेहतर है, लेकिन बोल्टन मार्केट के अतराफ में पानी भरा हुआ है। दुकानदार यहाँ पर इंतजार में तो है कि पता नहीं कब इंतजामिया आएगी, यहाँ पर बाकी आग का जो इंतजाम किया जाएगा ताकि वो अपनी शॉप खोल सके। लेकिन जो सूरत हाल मैं देख रही पर्सनली, मेरे मुताबिक तो आज मुझे लग रहा है कि दुकानदार के पास रात का सामना होगा। और मैं अगर कल की बात करूँ तो जब बरसात हुई थी, सफात यकीन माने कि हम रिपोर्टर की सूरत हाल देख कर कराची से रोना आ रहा था कि कराची और किसी दोस्त या गाँव या कम्युनिटी होती उसको कोई फर्क नहीं रहा। पूरा कराची डूबा हुआ था और अब भी डूबा हुआ है। बारिश को सामने में बहुत गंदे गुजर गए हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर पानी से ही निकाला गया है। सड़कों पे अब भी पानी जमा है इस एमेजेना रोड पे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हिना दीदार और अफजल खान हमारे साथ मौजूद थे, आ रहे थे एमेजेना रोड पर इस वक्त क्या सूरत हाल। साथ में मलीर नदी में भी जो सूरत हाल थी वो भी हमने दिखाई। और अभी हम आपको फिर से बता दें कि आज भी बारिश होगी, कल भी बारिश होगी। सो खुदारा गैर ज़रूरी तौर पे अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि शहर में अब सैलाबी सूरत हाल पैदा होगी। और कराची में सैलाबी सूरत हाल पर आर्मी चीफ ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है। आर्मी चीफ की कोर कमांडर कराची को हर मुमकिन इमदाद की हिदायत है। DG ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने यह हुक्म दिया है कि कराची और सिंध में सैलाबी सूरत हाल पर रिलीफ ऑपरेशन तेज़ करें। जवान फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुँचें और लोगों की मदद करें। फौजी दस्ते दूर दराज इलाकों में पहुँच कर मुतासरीन की इमदाद करें। अजियत से 2-4 शहरियों की
हर मुमकिन इमदाद की जाए, ऐसा कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। बिल्कुल शफात। तो देखिए, जब बराने रहमत बरसते ही कराची में हमने किस तरीके से देखा पिछले दिनों कि नाले उबलने लग जाते हैं, घरों में, अस्पतालों में, दुकानों में पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है, बिजली बंद तो होती ही होती है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जैसे बारिश का एक कतरा गिरेगा तो कि इलेक्ट्रिक जो है वो आपसे बिजली छीन लेगा। लेकिन अब कराची वालों को लैंड स्लाइडिंग के लिए भी खुद को जहनी तौर पर तैयार करना होगा, क्योंकि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब कल पहाड़ी तोदा गिरने से रिहायशी इमारत की पार्किंग में खड़ी मुतादिद गाड़ियाँ और जो मोटरसाइकिल्स थी वो दब गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और मदिया, आपने देखा होगा कि गुलिस्तान जौहर के कुछ इलाकों में मौसमियात के करीब और ख़ास तौर पे कराची का एक बड़ा जो नॉर्थ नाज़ाबाद की साइड है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आबादियाँ हैं जो कि टीलों पर कायम हैं। और अब जब ख़ास तौर पे ऐसी बारिश, जैसे कल हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जिस नोयत की बारिश हो रही है ये ज़मीन को भुरभुरा कर देती है। बिल्कुल शफात। और ये मनासिर तो हमारे नाज़रीन जो हैं वो स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ये लैंड स्लाइडिंग का जैसे वाक़या, और उसमें तकरीबन 20 जो गाड़ियां हैं वो इस जो मट्टी के दोदे के नीचे जो है वो दब गई। और पीटीएमए ने पहाड़ के ऊपर कायम जो घरों को अब खाली भी करा लिया है, और वो तमाम तर लोग जो कि ऐसी किसी जगह पे रहते हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि किसी मखदूश इमारत में रहते हैं, तो उनको भी वार्निंग एक तरह से जारी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट पीटीएमए के एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन मकसूद सोमरू साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। ये बताएगा कि शहर में इस वक्त करंटली सूरत हाल क्या है, और जहाँ पर ये लैंड स्लाइडिंग का वाक़या हुआ है वहाँ पे रेस्क्यू का काम जारी है, मुकम्मल हो गया है, क्या सूरत हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वाकई में वहाँ पे गुलिस्तान जौहर में ब्लॉक 3 में ये वाक़या हुआ था जहाँ पे वो लैंड स्लाइडिंग हुई थी। और हमारी टीम और क्या कहते हैं हम लोग सारे जो वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ पे इत्तेफाक से जब हमने रेस्क्यू का काम शुरू किया तो वहाँ पे और भी मजीद जो है लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया था, क्योंकि बरसात रुक नहीं रही थी और बरसात मुस्तकिल चल रही थी। तो इसलिए फिर उसको जो है बरसात रुकने तक मुलतवी किया गया। उस दौरान जो है KBCA की टीम को बुलाया गया, क्योंकि मजीद जो इमारतें हैं वहाँ पे पहाड़ी पे वो भी गिरने का खदशा था, ताकि उनको सर्वे करा के खाली करा के उसके बाद जो है काम शुरू किया। तमाम PDMA की टीम और NDMA की टीम वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने अंदाज़ा किया कि कोई जानी नुकसान अल्लाह के फजल करम से और कोई जख्मी जो है वो नहीं हुआ। तो इसलिए फिर वो कल चीफ मिनिस्टर साहब भी आ गए और तशरीफ लाए थे वहाँ पे, और उन्होंने भी आके जो है वो देखा वहाँ पे, और उन्होंने भी यही हिदायत दी कि सुबह ये जो है अर्ली इन द मॉर्निंग ऑपरेशन शुरू किया जाए। हमने वहाँ पे ऑपरेशन शुरू कर दिया अपना, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वहाँ पे आपको जो है ये डेब्री हम हटवा देंगे। मकसूद साहब, ये बताइएगा कि कराची में और भी कई आबादियाँ हैं जो कि टीलों पर आबाद हैं। गुलिस्तान जौहर के कई ब्लॉक्स हैं जहाँ पे जो मट्टी के टीलों के ऊपर आबाद हैं, मौसमियात की साइड पे हैं, और नॉर्थ नाज़ाबाद की भी साइड है जहाँ पे आबादियाँ जो हैं वो टीलों पर आबाद हैं। तो क्या उस हवाले से कुछ सर्वे किया गया है कि कौन सी ऐसी आबादियाँ हैं जो इस वक्त खतरे में? जी हाँ बिल्कुल, ये KBCA की टीम अब रवाना की गई है चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पे, ताकि वो पूरे कराची के जो भी ऐसे इलाके हैं वहाँ पे जाके अंदाजा करें कि कौन से इलाके मजीद खतरे में हैं, और उनको बर वक्त जो है वहाँ से अगर वेकेशन हो सकती है तो वेकेशन, नहीं तो अगर उनको कम खतरा है तो मकसूद साहब, वहाँ उन पे इलाकों के आप नाम ले सकते हैं ताकि जो लोग हैं वो भी अलर्ट हो जाएं? सर वो KBCA की टीम अगर हमें बताएगी तो हम आपको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर देंगे, नहीं तो ये मजीद आपको जो है KBCA की ही टीम बता सकेगी या कंसर्न डिप्टी कमिश्नर। ओके, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर बता सकेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि कराची में ये जिन इलाकों में अभी फ़िलहाल आपकी जो टीम काम कर रही है, जिन घरों को खाली कराया गया है, क्या उन लोगों के लिए कोई रिलीफ कैंप कायम किया गया है या सिर्फ उन्हें खाली करने की हिदायत जारी की गई? सर उनको खाली करने की हिदायत तो दी गई है, लेकिन मुतल्लिका जो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो कि डिप्टी कमिश्नर है, वो उनको मुतबादिल जगह फराम करने की कोशिश भी कर रहे हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी है। नहीं तो कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों को जो है वो जो अभी वैसे भी स्कूल खुले भी नहीं है, तो फिलहाल वक्ती तौर पर इनको स्कूलों में रखा जाए, और अगर कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम यहाँ से अपनी जो क्या कहते हैं कैंप से वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी मकसूद साहब आपका कि आपने मतलब जो सिचुएशन है इस वक्त करंटली रेस्क्यू की क्या सिचुएशन है आपने इस हवाले से हमें बताया। अभी हम आपको बताएं कि कराची में मानसून बारिशों का जो ताज़ा सिलसिला है जो कि 24 अगस्त से शुरू हुआ था
और ये कल तक यानी कि 27 अगस्त तक जारी रहेगा। और इस दौरान महकमे मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग जारी कर दी है। अलबत्ता शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक 21 अगस्त होने वाली बारिशों का जो पानी है शफात, वो भी अभी तक नहीं निकाला जा सका। और उसकी वजह है मदिया, हाँ। उसकी वजह है वहाँ पर मौजूद तजावज़ात जिनके ख़ात्मे के बगैर पानी की निकासी मुमकिन नहीं है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं नामवर माहिर तामीरात यास्मीन लारी साहिबा। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। यास्मीन साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, ये जो कराची में हम देखते हैं कि जितना भी ड्रेनेज है, ख़ास तौर पे जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, उसके वो कभी अपने जो उसके लिए अगर कोई डेडिकेटेड पाथ्स बनाए गए हैं, कोई ड्रेनेज बनाए गए हैं, तो वो कभी वहाँ नहीं जाता, वो सड़कों के ज़रिए अपना रास्ता बनाता है। ये क्या मास्टर प्लानिंग की गलती है, शहरी आबादी का एक अनफॉर्मुलेटेड किस्म का फैलाव है, क्या है ये? देखिए, बात ये है कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये है कि अब बारिशें ज़्यादा होंगी और ये फ्रीक नहीं है इवेंट। ये हो सकता है हर साल हमें इसका मुकाबला करना पड़े और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करने की ज़रूरत है जो हम नहीं फ़िलहाल कर रहे। देखिए, जैसे पहले जलजला आता था 6.5 तक हम कहते थे रिक्टर स्केल का होगा, अब वो 7.6 हमने देखा जो 2005 का जलजला था। इसी तरह से बारिशें अब ज़्यादा होंगी, अर्बन फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी बाज़ वजूहात है और हमें एक्चुअली आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखने होंगे। नाला क्लियरेंस और तजावुज़ात तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको करना बहुत ज़रूरी जो मैक्रो लेवल पे है, लेकिन मेरा ख्याल है माइक्रो लेवल पे बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। क्योंकि जैसे अभी आपने खुद कहा, ज़्यादातर पानी हम सड़कों पर डाल रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? मतलब हमें कोई तरीका करना चाहिए कि ज़्यादातर पानी जो छतों का है और जो ग्राउंड से है वो वहाँ ना जाए। इसके अलावा ये हुआ है हमारे पास कि हमने डेंसिफिकेशन बहुत ज़्यादा कर दी है। हमने हर जो हमें जगह मिली वहाँ पे हमने बिल्डिंग बना दी, जहाँ मिला वहाँ मल्टी स्टोरीज कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि खुली जगह जहाँ पे पानी एब्जॉर्ब हो सकता था वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो ये बहुत सारी चीज़ें जी फरमाइए। यास्मीन साहब, बिल्कुल इसमें और इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार है कि जहाँ से पानी निकलना चाहते हैं, जहाँ पर पानी जाना चाहिए था, वो जगह जो हैं वो ऑक्यूपाइड हो गई हैं। अच्छा, अभी बताइएगा कि अभी जो करंट सिचुएशन हम कराची की देख रहे हैं और उसको हम बेहतर करना चाहते हो, तो क्या ये जो अभी जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसी में थोड़ी बहुत तब्दीली लानी पड़ेगी या फिर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना पड़ेगा? मेरा ख्याल है कि माइक्रो लेवल पे बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। मेरा ख्याल में हमें चाहिए कि अब हम एक जो हाउस होल्ड्स हैं, लोग जो हैं, सिटीजन जो है वो मिलके हुकूमत के साथ मिलके इस पे काम करें। तो इसमें अब ये हो सकता है, देखिए कि बाज़ मुल्कों में, और मैंने कुछ स्टडी किया इसके बारे में, कई जगह पे ये चीज़ें हो रही हैं और लोगों ने बहुत इस पे चीज़ें अभी बायलॉज लेके आए हैं, बिल्डिंग बायलॉज, जिसमें अब ये कहा जाता है कि जो भी घर है उसका जो छत का पानी है वो सड़क पे ना जाए, उसको वहीं पर आप एक्वाफिल्ट पिट्स होते हैं वो बनाएं आप और उसमें आप पानी आपका चला जाए और जो भी उसका होगा छत का पानी वो फिर बाहर ना जाएगा। यास्मीन साहब, हम देखते हैं कि कराची के 63 नाले हैं और वो 3 बड़े नालों में जाते हैं। उन 63 नालों को फीड करने वाले हजारों नाले होने चाहिए जो नज़र नहीं आते, जिन पे आबादियां कायम हो गई हैं। इस सारी सूरत हाल को मैनेज करने के लिए तो बहुत बड़े लेवल पे स्टडी की ज़रूरत है, बहुत सारी आबादियों को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत में पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल एबिलिटी है कि वो इस किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकें, इस किस्म का काम कर सकें? देखिए, बात ये कि सिर्फ नाले ही नहीं हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें और भी तो हम कर सकते हैं और ये कि लोगों को हटाना एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि जो लोग वहाँ बस गए हैं, ये सही है कि जहाँ अगर वहाँ नाला है तो उस पर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन और जो जगह हैं वहाँ पर वो लोग वहाँ से आप नहीं हटा सकेंगे, कहाँ से ज़मीन आएगी, कैसे होगा। लेकिन जो इंटरिम में हम कर सकते हैं वो भी हम नहीं कर रहे ना, क्योंकि आप देखिए कि कम से कम 60% ऐसे लॉट्स हैं जिसमें खुली जगह है जहाँ पे हम ये एक्वाफाइड पॉन्ड्स बना सकते हैं, ये पिट्स हम बना दें, जो कि हमें ज़्यादा चाहिए भी नहीं है, मुश्किल से 5-6 फुट चौड़ी गोलाई में होनी चाहिए और तकरीबन 7-8 फुट डीप होनी चाहिए। उसके बाकायदा हैं, कैलकुलेशंस हो सकती हैं। मतलब जो मैंने कैलकुलेट किया कि अगर 1000 स्क्वायर फुट का आपकी छत है तो आपको तकरीबन 5 फुट डायमीटर का 7 फुट का आपको एक डिश चाहिए जिसमें आप बोल्डर्स डाल दें, फिर आप उसमें ग्रेवल डाल दें, उसमें सैंड डाल दें ताकि पानी जो एब्जॉर्ब होना शुरू हो। तो एक तो ये काम है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनका भी पानी जो है वो सड़कों पे जा रहा है, वो क्यों जा रहा है? वो अपने पास टैंक्स बना सकते हैं। हम देख रहे हैं कि जो नए इलाके बन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि विदाउट एनी प्लानिंग बन रहे हैं, बड़े बड़े पॉश एरियाज में भी चले जाएं, लेकिन वहाँ पे लगता है कि ये एरियाज प्लान ही नहीं किए गए थे बारिश को देख के।
तो फिर देखिए ना, हम जितने भी बना देंगे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, हम पानी इतना कहीं पे भी नहीं जा सकते. हमें ज़मीन का जो एब्जॉर्प्शन की उसकी जो क्वालिटी, उसको हमें डेफिनेटली मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि हमें एक्वाफर जो उसके अंदर पानी जा सकता है. अगर हम ये मिनिमाइज कर दें, जैसे मैं अभी मेरिया रोड पे हमें कर रहे हैं, वॉकिंग स्ट्रीट बना रहे हैं, मेरा ख्याल ये कि हमें अब चाहिए ये कि कम से कम 10% जो हमारी व्हीकलर स्ट्रीट्स हैं उनको हम वॉकिंग स्ट्रीट्स बना दें. और इसका मतलब ये कि 1/3 जो हमारा एरिया है वो ग्रीन हो जाएगा. उसके अंदर पानी जो एब्जॉर्ब हम कर सकते हैं, उसके अंदर हम पिट्स बना सकते हैं. हमें पानी को देखिए संभालना होगा, हमें रेन वाटर कंजर्वेशन करनी होगी. तो ये जब तक हम नहीं करेंगे, ये हमारी चीज़ आगे तक नहीं जाएगी. इसके अलावा आपके पार्क्स हैं, बिल्कुल. पार्क्स में आप पॉन्ड्स बनाएं, वहाँ पे क्यों नहीं पानी जमा वहाँ का हो सकता है. वी हैव टू स्टॉप वाटर फ्रॉम गोइंग टू ऑन द रोड्स. अभी क्या है, पेवमेंट जो है वो रोड के ऊपर है, वो उसका भी पानी सारा हो जाता है. हर जगह बहुत हमने सारे पेव कर अवामिल दिया ऐसे हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है कि नेक्स्ट ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो और ऐसे हादसा दोबारा ना हो जो कि कराची के लोगों को फेस करने पड़े. बहुत शुक्रिया जी, यास्मीन साहब हमारे साथ थी. कराची में जो कंडीशन है वो तो आपने देखी है, सिर्फ ये कराची की हवाले से सूरत हाल नहीं है. अगर हम मीरपुर ख़ास की बात करें, अगर हम हैदराबाद की बात करें, तो ये वो इलाके जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है. और साथ में कराची में आपने देखा कि मुसलसल बारिश हो रही है. ये एग्जैक्टली बारिश आज कब शुरू होगी, कितनी पड़ेगी, कितनी मिलीमीटर होगी और कौन कौन से शहर इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे, ये बताएंगे मैं. शफात, आज की बारिश की क्या सिचुएशन है और क्या आज भी बारिश उतनी ही होगी जितनी कल हुई थी? मदीहा, जैसे हम कल शेयर कर रहे थे कि जो महकमा मौसमियात ने जो तस्वीर जारी की थी उसके मुताबिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा ताकत थी. आज के दिन उस सिस्टम ने अपनी ताकत थोड़ी बहुत लूज़ की है, लेकिन आइंदा आने वाले 24 घंटों में यह सिस्टम दोबारा से ताकत पकड़ेगा, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से जो तस्वीर जारी की गई है इस वक्त जो ये हवा का कम दबाव है इसका ज़्यादा फोकस हमें खुजदार ज़िला में नज़र आ रहा है और सिंध के शुमाली इलाका जात में, ख़ासतौर पर ज़िला कश्मीर में भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त ये हवा का कम दबाव मौजूद है. लेकिन चूँकि इस वक्त बहरे अरब से हवाओं का सिलसिला आ रहा है, जारी है, जिससे लगता ये है कि आने वाले 24 घंटों में ये हवा का कम दबाव मज़ीद फैलेगा. इसका फैलाव पंजाब के शुमाली इलाका जात तक जाएगा, जिसकी वजह से कराची में दोबारा ये सिस्टम स्ट्रेंथ पकड़ेगा और आज शाम के बाद से तेज़ बारिशों की तवक्को की जा रही है. ये बारिशें कल जैसी होंगी या नहीं होंगी ये तो खैर जैसे जैसे अपडेट होगा, सिस्टम जैसे ताकत पकड़ेगा उसी वक्त बताया जा सकेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होता है. ये आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ये हवा का कम दबाव जो कराची में मौजूद है, ये पूरे पाकिस्तान में इसका इम्पैक्ट जा रहा है और ख़ास तौर पे हब रिवर के कैचमेंट एरिया में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं. एज वी स्पीक कोरंग रिवर में, समा रिवर में और नाला लई, जो कि रावलपिंडी के 3 मेन रिवर्स हैं जिनमें से जिनके इर्द गिर्द रावलपिंडी आबाद है, उन तीनों के कैचमेंट एरियाज में बड़ी तेज़ बारिश हो रही है. तो रावलपिंडी रहने वाले अलर्ट रहें. ठीक है, लोगों ने तो अलर्ट रहने शफात, लेकिन साथ में बात ये भी है कि जो लोग पाकिस्तान की जो आज सूरत हाल को देख रहे हैं, कराची की सूरत हाल को जो आज देख रहे हैं, तो ये कराची की सूरत हाल कोई नई नहीं है. आज से 30 बरस अगर पीछे भी चले जाएं तो बड़ा मशहूर एक टीवी का प्रोग्राम आता था जिसका नाम था 50-50. तो उसने भी कराची में जो बारिशों के बाद होने वाली सूरत हाल को बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जो लोगों के सामने पेश किया था. एग्जैक्टली क्या शो था, आपके साथ भी हम कुछ क्लिप शेयर करते हैं. आइंदा मौसम बरसात के लिए अपने हंगामी प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है. प्रोग्राम के मुताबिक शहर में शिकायत के लिए बहुत से मराकज़ कायम किए जाएंगे, जहां तक पहुंचने के लिए कश्तियों और मोटर बोट्स का इंतजाम किया गया है. ये भी तय पाया है कि बरसात के दौरान बसें सिर्फ सदर के इलाके तक चलेंगी और सदर से टावर तक बरास्ता आई चुंदरीगढ़ रोड तक लांचों की सर्विस शुरू की जाएगी. मौसम बरसात के बारे में महकमा बिजली में भी खासी सरगर्मी पाई जाती है, लेकिन फिलहाल वहां पर इस बात का फैसला हो रहा है कि बरसात के दिनों में कौन सा डिपार्टमेंट कितने घंटे ओवरटाइम करेगा. 84 इंच कतर की पाइपलाइन फट जाने से पैदा होने वाली स्विमिंग पूल में आज तैराकी के कई मुकाबले हुए. बैक स्ट्रोक मुकाबलों में दूध फरोश कल्लू ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया. फ्री स्टाइल मुकाबलों में इतने ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया कि मजबूरन ये मुकाबला रोकना पड़ा, क्योंकि मरम्मत के काम में खलल पड़ने लगा था. अब आपको थोड़ा बहुत कुछ हंसाना भी था हमें, क्योंकि परेशानी तो बारिश की वजह से बहुत होगी, लेकिन जब आपने देखा ऐसा लग रहा है ये इसी टाइम के वाले से बात कर रहे हैं. मदिया, एक और खबर भी शेयर करते चले. खलीज बंगाल में एक और हवा का कम दबाव सिंध की तरफ बढ़ रहा है. जुमेरात से अगले स्पेल की तैयारी पक्की समझे. हो सकता है शायद वो ताकत पकड़ ले और दोबारा से बारिशें शुरू हो जाएं. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाही करते चलें कि इस वक्त पाक फौज के दस्ते कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। बहुत सारे इलाकों में जहां पर लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं और जहां पर सबसे ज़्यादा पानी है, उन इलाकों में आर्मी की इंजीनियर्ड बोट्स जो हैं, जो कश्तियाँ जो हैं, वो लोग जो कि फंसे हुए हैं उनको लेके महफूज मुकाम पर लेके मुंतकिल कर रही है। और वो तमाम तर लोग जो कि जिनके घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया था, जो अपने छतों पर मौजूद हैं, अब उनको भी रेस्क्यू करने के लिए जैसे ही वेदर परमिशन देगा और जैसे वेदर की तरफ से सही कॉल आएगी तो जो आर्मी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उससे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। आर्मी की कश्तियों के जरिए मुतासरा अफराद को मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरा अफराद को खाना और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम की जा रही है। हमारे नुमाइंदे लईक हमारे साथ मौजूद हैं। जी लईक, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पाक फौज की रेस्क्यू टीमें जिसमें इंजीनियर्स और दीगर लोग भी शामिल हैं, वो भरपूर अंदाज में जो बारिशों की वजह से मसाइल पैदा हुए हैं, सैलाबी सूरत हाल है, उसमें इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो मुतासरा अफराद मुख्तलिफ जगहों पर फंसे हुए हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। तैयार खाना भी फराहम किया जा रहा है, दीगर अशिया ज़रूरिया भी उन्हें फराहम की जा रही है। और मलीर नदी में पानी के बहाव वो जो तेज़ हो चुका है और जिससे नुकसान हो रहे हैं उसको कम से कम करने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है क्योंकि आज मकामात पर तकरीबन 200 से ज़ायद खानदानों की इत्तलात मिली है कि वो छत पर मौजूद है और महफूज मकामात पर मुंतकिल नहीं हो सकते पानी की वजह से। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है कि जैसे ही मौसम बेहतर हो तब ये अमल शुरू किया जाए। दीगर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी जो ज़रूरी रिलीफ काम करने हैं और इंजीनियर्स ने जो ज़रूरी रिलीफ काम करने हैं उनके ऊपर भी काम जारी है। जी सही, बहुत शुक्रिया लईक रहमान आपका में तफसीलात से आगाह करने के लिए। कराची के वो इलाके जहाँ पर इस वक्त पानी घुटनों घुटनों खड़ा है और वो जगह जहाँ पर लोगों के घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है, वहाँ पर पाक फौज के दस्ते जो हैं वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। लोगों के उनके घरों तक खाना भी पहुँचाया जा रहा है। वो लोग जो कि अपने घरों में फंसे हुए हैं और वो इलाके जो कि बिल्कुल डूब चुके हैं, वहाँ पर आर्मी की इंजीनियर्ड कश्ती सर्विस के जरिए उनको महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। शफात, तकरीबन कोई 200 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके घरों में पानी जा चुका है, तो वो अपने घरों की छतों पर अब रहने पर मजबूर हैं। तो अब जैसे ही वेदर थोड़ा क्लियर होता है तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी जो आर्मी की जानिब से वो चलाई जाएगी और फिर लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं बारिश के मौसम के दौरान जो एक तो जो सूरत हाल है वो तो डेवलप होती है, लेकिन जो हेल्थ के हवाले से भी काफ़ी इश्यूज डेवलप हो जाते हैं जो बाद में वबाई अमराज की सूरत में सामने आते हैं। बिल्कुल शफात, रीज़न ये है कि जब बारिश होती है, जब बारिश का पानी सही तरीके से ड्रेनेज के सिस्टम के थ्रू होकर नहीं आगे नालों में बहता और जब रह जाता है उन्हीं इलाकों में, उन्हीं गलियों में और पानी काफ़ी देर खड़े रहता है तो ताफुन तो उठता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी वबाई अमराज भी जन्म लेती हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, टाइफाइड, सेरिफेरिस हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ENT सर्जन एंड कंसल्टेंट डॉक्टर सैफुल्लाह मीर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमने बात की कि जनाब बारिश में बीमारियां फैल सकती हैं, नाक कान गले के हवाले से बताइएगा कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं और ख़ास तौर पे बच्चों को इससे कितना ख़तरा होता है? जी, बारिश के पानी में जो जरासीम होते हैं स्ट्रेप्टोकोकल, स्टाफिलोकोकल, इससे जो है गले की बीमारियां हो सकती हैं, जिससे टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं और कान में पानी जाने की वजह से ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है, जो एक बैरूनी कान की जल्द का इन्फेक्शन होता है। क्योंकि कान हमारा एक नज़र आने वाली चीज़ है तो उसमें डिफॉर्मिटी हो सकती है और एक परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है। और जो डायबिटिक लोग हैं जिनको अगर फंगस इन्फेक्शन हो गया, जो वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है जो इम्यूनो सप्रेस स्टेट में बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है और उनको अर्जेंट मेडिकल केयर की ज़रूरत हो सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा, सिर्फ यही ख़तरा नहीं है बल्कि डेंगू ने एक बार फिर से पाकिस्तान में भी सर उठाना शुरू कर दिया। ऐसे तमाम तो सूरत हाल में जब सड़कों पे पानी मौजूद रहेगा, वो साफ़ नहीं किया जाएगा, ताफुन तो अलहदा से उठ रहा है, बीमारियाँ अलहदा से, आपको पता है कि गटर का पानी भी इस पानी में शामिल हो चुका हुआ है, ये कितनी ख़तरनाक बात है? जी, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। इसमें एक्सट्रीमली हमें जो है खुश्क पानी को ड्रेन आउट करने की ज़रूरत है। जहाँ हो सके तो
जो वहाँ मट्टी डाल के, चॉक डाल के पानी को ड्राई आउट करा जाए, मच्छरों का स्प्रे का इस्तेमाल करा जाए ताकि मच्छर ना हो, मलेरिया ना हो, डेंगू ना हो, और खुदा ना खास्ता अगर मलेरिया हो जाए और तो उसकी तशखीस हो जाए तो फिर उसका मुकम्मल इलाज करें। उसका अधूरा इलाज जो है बहुत ख़तरनाक हो सकता है। डेंगू के लिए भी आपको प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है, वो भी बहुत जानलेवा है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और कोविड के बैकग्राउंड में दिस कैन बी अ डिज़ास्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा आपने जो सोल्यूशन दिया है वो उसको पंजाबी में मुझे एक लफ्ज़ याद आ रहा है, वो कहते हैं मिट्टी पाओ। तो जहाँ भी पानी देखें बारिश का उससे फ़ौरन मिट्टी पाएँ। अब ज़रा मुझे ये भी बताइएगा सर, स्किन के हवाले से, क्योंकि बारिश में ख़ास तौर पे बच्चे, उनको नहाने से रोका नहीं जा सकता। बारिश के स्पेल तो जारी हैं और अभी 2 स्पेल मजीद आना बाकी हैं। बच्चे क्या शफात, हमने देखा है कि वीडियोस जो आई हैं उसमें बड़े भी जो हैं वो तैराकी के मुकाबले कर रहे हैं इसमें तो। जी जनाब, तो स्किन के हवाले से बताइएगा, क्या ख़तरात हैं स्किन की बीमारियां फैलने के लिए? जमे हुए पानी में नहाने से जो पानी ज़मीन पे गिरा हुआ है वो तो कंटामिनेटेड है। अगर उसमें तो सख्ती से आपको बच्चों को मना करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन के जाएं ताकि वो अगर मच्छर है बाहर तो वो ना काटें आपको, आपका कवर्ड एरिया ज़्यादा रहे। और जो है कोई भी ऑयल वगैरह लगाएं स्किन पे, और कानों में रुई को तेल में डिप करके कान में लगाएं, क्योंकि कान में जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है बहुत दर्दनाक बीमारी है। और बच्चे जो है स्पेशली खाना खाना छोड़ देते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर उनकी वो भी बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है। आंखों में अल्सर होने का है, कंजंक्टिवाइटिस होने का है, और अगर ऐसी उसको बार बार वॉश करें आंखों को। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए सिर्फ ये नहीं है, हमारे यहाँ तो हमें निगलेरिया का भी खौफ है कि ये जो पानी है, हमारे पानी में ऑलरेडी निगलेरिया मौजूद है, और उस तरह की सिचुएशन में कोई, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसे भी इंसिडेंट हो सकते हैं? गो के कहा जाता है निगलेरिया साफ पानी में होता है। जी, निगलेरिया होने का खदशा है। तो जो आपका पीने का जो और खाना खाने का पानी है और वज़ू करने का पानी है, मुंह धोने का पानी है, जहाँ तक हो सके इसको उबाला जाए। 3 मिनट रोलिंग बॉयल पे आप पानी को उबालें। पानी के गर्म होने की डिफरेंट स्टेजेस होती है। जो एंड स्टेज होती है वो रोलिंग बॉयल कहलाती है। वो जब वो स्टेज रीच हो फिर 3 मिनट दें, और उस पानी को फिर ठंडा करके उसका इस्तेमाल करें पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, और हो सके तो मुंह और नाक और आंखों को धोने के लिए, क्योंकि कंटामिनेटेड वाटर से आप धोएंगे तो ये खदशा हो सकता है निगलेरिया हो, कंजंक्टिवाइटिस हो, आंखों में अल्सर हो, कानों में इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा, अब ये बताएगा डॉक्टर साहब कि यूजुअली ऐसे आंखों का इन्फेक्शन जो है इस मौसम में वो बढ़ जाता है, इसकी वजह क्या होती है और कैसे बचा जा सकता है इससे? इसकी वजह जो है डिफरेंट बैक्टीरिया जो पानी में होते हैं और वायरसेस जो वो आंखों को आपके सुर्ख कर देते हैं। इसको कंडीशन को कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। इसको आंखों को साफ पानी से बार बार धोएं ताकि वो क्लीन रहे और बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन ना हो। अगर वो रिजॉल्व नहीं होती then you need immediately go see a consultant ताकि ब्लाइंडनेस या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो। ऑल्सो डॉक्टर साहब, वो लोग जो कि जब बारिश में अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं और जिनके कपड़े बारिश के पानी में, स्पेशली गंदे पानी में भीग जाते हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो घर में एंटर होने से पहले, जैसे हम लोग हमने कोरोना के वाले से भी बड़ी एहतियात की, जब घर जाते तो जाते साथ ही जो बाहर के कपड़े होते तो फ़ौरन चेंज करते थे, नहाते थे। इसी एहतियात की दोबारा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सैफुल्लाह मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी जा रहे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। बाखबर सवेरा में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नया तालीमी निसाब मुतारिफ कराया जा चुका है। नर्सरी से 5वीं जमात तक के लिए नया निसाब तैयार हो गया है और टेक्स्ट बुक छपने का मरहला जारी है। आइंदा साल नए और यकसा निसाब को नाफिज किया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमरीन आरिफ साहिबा, जो कि महकमा तालीम एजुकेशन एडवाइज़र हैं। बहुत शुक्रिया जी अमरीन साहबा वक्त देने के लिए। अमरीन साहबा, हमने निसाब का मुतालिया किया है जो महकमा तालीम ने अपनी वेबसाइट पर डाला है। एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि नॉर्मली जो हमारे टीचर्स हैं उनकी साल में 3 दिन ट्रेनिंग होती है यूजुअली, एक आम पब्लिक सेक्टर में जो टीचर्स हैं।
لیکن اس دفعہ اس میں کوئی ٹیچنگ کی جو ٹریننگ ہے اس کے ڈیز کو بڑھایا نہیں گیا. آپ کو لگتا ہے ہمارے ٹیچرز کو اس نئے نصاب کے مطابق ذرا زیادہ اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے, زیادہ ٹریننگ کی ضرورت ہے؟ جی السلام علیکم. آپ کا جو ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے سوال ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اس میں آپ نے جو ایک 3 دن کا ایک انڈیکیشن دیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کون سے ڈیٹا سے لے کے دیا ہے, لیکن 3 دن سے زیادہ ہی ٹریننگ جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں ٹیچرز کی ہوتی ہے, بلکہ کچھ صوبوں میں تو ایک بہت تفصیلی نظام موجود ہے ان سروس ٹریننگ کا بھی. اس کے علاوہ جو بھی پبلک سیکٹر میں ٹیچرز آتی ہیں وہ پری سروس ٹریننگ کر کے آتے ہیں, یعنی وہ ٹیچر ایجوکیشن کی ڈگریز بھی لے کر آتے ہیں. تو ایک ٹریننگ کا تو ایک کافی واضح نظام موجود ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا جو نیا نصاب ہے اس پہ ٹیچرز اس کو ٹریننگ کی فردر ضرورت ہے یا نہیں, تو بالکل ہے. اور جو نصاب کا جو کانٹینٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھ تو اس میں ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ ہوا ہے ٹیچرز کے لیے کہ وہ اس کو کیسے پڑھائیں گے, کس طرح سے اس کو آگے لے کر چلیں گے. اسیسمنٹ کو بھی ڈیڈیکیٹ ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیشنل کریکولم کونسل ہے وہ ٹیچر ٹریننگ کے موڈیولز بھی بنا رہی ہے جو اس نصاب کو ان کو بہتر طور پہ سمجھنے میں مدد. اچھا, تو یہ بتائے گا کہ چلے ٹھیک ہے ٹیچرز کی ٹریننگ تو ہوگی ہی, لیکن جو نصاب ہوگا کیا وہ اپ گریڈ کیا جائے گا؟ کیونکہ اگر یکساں تعلیمی نظام رائج کرنا ہے اور سب تمام تر اسکولوں میں ایک ہی نصاب پڑھائی جائیں گی تو کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں, میرے خیال میں نا تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کریکولم ڈاکیومنٹ یا نصاب ہے کیا. ٹھیک ہے جی, نصاب جو ہوتا ہے وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک سیٹ آف گائیڈ لائنز ہے جو یہ بتاتا ہے اسکول کو کہ کون سا سبجیکٹ کون سی کلاس میں کس لیول کا پڑھایا جائے گا. کلاس 1 میں جو بچے موجود ہیں جو 5 سے 6 سال کی عمر کے ہوتے ہیں وہ کیا کانٹینٹ پڑھیں گے. تو یہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جو کہ گائیڈ لائنز نہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ سبجیکٹ کیسے پڑھایا جائے گا اور کس لیول تک پڑھایا جائے گا, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسیسمنٹ اور ٹیچنگ میتھڈالوجی کی بھی گائیڈنس دیتا ہے. تو یہ نصاب جو بن گیا ہے جو کہ اب منسٹری کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, اس میں جو ہم نے شامل کیا ہے لوگوں کو وہ ایک بہت ورائٹی آف اسکول سسٹم سے شامل کیا ہے. اس میں پرائیویٹ اسکول کے بھی لوگ شامل رہے ہیں. آپ نے صاحبہ بات کی اسیسمنٹ سسٹم کی, اور وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم نارملی دیکھیں تو جو پبلک ایگزامینیشن آج کل کیے جاتے ہیں ان میں آپ کو ٹیکسٹ کو ریپروڈیوس کرنا ہے, اس اسکل کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. لیکن جو اسیسمنٹ کا جیسے آپ نے ذکر کیا یہ ایک بڑا پیچیدہ پروسیس ہے, اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ اس کے پر بڑی خاص توجہ دی جاتی ہے. جب تک اس کو امپروو نہیں کیا جائے گا آپ ایجوکیشن کوالٹی کو امپروو نہیں کر سکتے. لیکن جو موجودہ گائیڈ لائن دی گئی ہے منسٹری آف ایجوکیشن کی جانب سے اس میں ہمیں اسیسمنٹ کا سسٹم کہیں ریوائز ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. جی, ایک تو یہ کہ نصاب کی جہاں تک بات ہے تو اس میں اسیسمنٹ کا ایک پورا چیپٹر ہے اور اس میں گائیڈ لائنس آئند جو ریفارم ہے جس پہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن کام کر رہی ہے وہ ہے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کو اکٹھا کرنا, ان کے ایکٹ کو ریویو کرنا اور ان جو ایگزام ریفارمز ہیں ان کو ریویو کرنا. آپ کو پتہ ہوگا کہ فیڈرل لیول پر ایک ادارہ ایگزسٹ کرتا ہے جس کو انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئر پرسنس کہتے ہیں, IBCC کے نام سے. IBCC جو ہے وہ سارے بورڈز جو پورے پاکستان میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے بنایا گیا ہے تاکہ یہ بورڈز جو ہیں وہ سسٹم کو ریویو کرتے رہیں, اسیسمنٹ سسٹم کو, چاہے وہ فارمیٹیو اسیسمنٹ ہے چاہے وہ سبمیٹیو اسیسمنٹ ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے. تو یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ اسیسمنٹ اور ایگزام ریفارمز پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اور پھر بہت سٹل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کریکولم کی لینگویج میں شامل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا کریکولم یہ کہتا ہے کام ہو رہا ہے اسیسمنٹ کے طریقہ کار کو ریوائز کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ جی. امرین عارف موجود تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب اگلے سال سے تعلیمی نصاب رائج ہوگا تو اسیسمنٹ کو کیسے چینج کیا جائے گا, بچوں کے ایگزامز کیسے لیے جائیں گے. بالکل, ساتھ میں شباب یہ بھی دیکھیں گے جو گائیڈ لائنز ابھی آئی ہیں کیا اس میں کوئی ترمیم بھی ہوگی, رد و بدل ہوگا یا نہیں ہوگا تو اگلے سال ہی پتہ چلے گا. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہیڈ لائنز سے واپس آئے, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा के राउंड 2 में, यानी 10 से लेकर 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। मेरे साथ ये जो साहिबा बैठी हैं ये भी मौजूद होंगी। मैं भी साथ में हूँ ना, मैं मदिहा नकवी मेरा नाम है, आपको तो पता ही है। तो हम दोनों साथ होंगे आपके साथ, जो अहम खबरें हैं वो भी बात करेंगे। खबरें अलग अलग सुनाएंगे लेकिन हाँ खबरें, हाँ नहीं जो बहुत सारी जो अहम इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, अभी बहुत सारे हैं। मतलब ये नहीं कि 9 से 10 में जो चीज़ें थी हमने कवर कर ली, हमारे पंडोरा बॉक्स में और बहुत कुछ है। और साथ में कुछ अच्छी सॉफ्ट खबरें भी आपके लिए रखेंगे। कल के मैच के वाले से बात भी करेंगे। हाय दिल दुख गया। वैसे मैंने आज सोचा मतलब शफात मैंने आज मैच की बात नहीं करनी, मेरा दिल टूट गया, बस मेरा दिल टूट हो गई। ये तो अच्छी बात है। कल मतलब आधा काम बारिश ने कर दिया, बाकी आधा काम जो है वो बाबर आजम ने कर दिया, तो मेरा ख्याल बचत हो गई, हम शिकस्त से बच गए। एनीवे जी, बहुत कुछ है आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। जनाब, सबसे पहले बात करते हैं सेनेट की, जहां अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्मी हुई और ऐवान में अपोजिशन का FATF बिल पर हुकूमत का साथ न देने का फैसला सामने आया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और वक्फ इमलात बिल भी मुस्तरद। कायदेवान शहजाद वसीम ने कहा कि यहाँ मामला कौमी सलामती का नहीं, माली सलामती का बना हुआ है। मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि सेनेट का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कायदे ऐवान लड़ने आ रहे थे, ये आपकी गली नहीं पार्लियामेंट है, हमें जो आंखें दिखाएगा उसकी आंखें निकाल लेंगे। फरूक नसीम ने कहा कि सख्ती दोनों तरफ से नहीं होनी चाहिए। मौला बख्शानियों का ये कहना था कि कौमी असम्बली में बिल आया, हमने पास किया, 15 मिनट बाद मसखरे को खड़ा कर दिया। कुछ भी हो जाए, हुकूमत कभी NRO नहीं देगी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है अपने ट्वीट में। और अपोजिशन ने मुल्क को फैटफ ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेल दिया। अपोजिशन लीडर अब पाकिस्तान को फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने नहीं दे रहे, ये ब्लैक मेलिंग है। बिल्कुल, साथ में उनका ये भी कहना था लेकिन मेरी हुकूमत ने NRO दिया तो ये कौम से गद्दारी होगी। के सियासी मंजरनामे पर अपोजिशन एक बार फिर मुतहरिक हो रही है और हुकूमत के खिलाफ महाजराई के लिए उनकी तैयारियां भी तेज़ हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में कायदे पे इख्तलाफ शहबाज शरीफ और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की जमातों को इकट्ठा करके मुशावरत को आगे बढ़ाएं और अपोजिशन की APC भी जल्द होगी। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। हमने एक मुकम्मल इत्तेफाक किया कि पार्लियामान में जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं और पार्लियामान के बाहर उनको हम सबको इकट्ठा करेंगे और इस मुशावरत के अमल को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। APC भी होगी, क्यों नहीं होगी, उसके लिए हमने जो तय किया है कि ये मुशावरत को हम आगे बढ़ाएंगे। रहबर कमेटी का इजलास होगा और फिर इंशाअल्लाह APC होगी, उसमें तमाम जमातें मौजूद होंगी और उसमें फिर फैसले होंगे। इसी तरह मौलाना साहब का कहना था कि पहले अपोजिशन की छोटी जमातों में मुशावरत होगी, फिर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से रब्ता किया जाएगा। अपोजिशन का तकसीम इन हालात में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए मुफीद नहीं होगा। आपस की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकायतें हैं, उसको हम दूर करें। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक पर इत्तिफ़ाक़ राय है, लेकिन उसके लिए मुश्तरका इक़दामात का एक तरीक़ाकार चाहिए, तो इसमें हम सबको शामिल करना चाहेंगे। छोटी जमातों का भी इजलास हो, इनके साथ भी फिर एक और तमाम का एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तक हम पहुँचें और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में हम फिर आइंदा का एक वाज़ेह लाए अमल कौम को दे सकें। ये जो साल गुज़रा है दूसरा, तो नाअहली और नालायकी की बुनियाद पर हमने इमरान खान को मैन ऑफ द ईयर करार दिया। ऐसे में वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ हसन चौहान ने अपोजिशन की खूब क्लास ली और कहा कि यू टर्न की बातें करने वाले शहबाज शरीफ सबसे बड़ा यू टर्न ले रहे हैं। मुनाफकत, धोखाधड़ी, 2 नंबरी लीगी कायदीन की आदत है। पहला झूठ ये बोला कि मैंने अपने भाई नवाज शरीफ को बाहर जाने की कोई जमानत नहीं दी। दूसरा झूठ ये बोला ने एक ढेले की करप्शन नहीं की। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी उंगलियां जाऊं दांतों में लेके जाऊं, इनका ये दावा सुन रही थी कि मैंने तो अपने भाई की कोई जमानत नहीं दी। शहबाज शरीफ साहब ने कल साबित किया ये झूठों के IG हैं। मुनाफकत, 2 नंबरी, चक्करबाजी, धोखाधड़ी इनकी सरिश्त में शामिल है। यू टर्न का रोना रोते हैं, इन्होंने W टर्न लिया है। आज बिलावल जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब मुलाकात कर रहे हैं
मैं हैरान हूं कि मौलाना फजल रहमान साहब की आत्मा को शांति नहीं मिल रही, वो टिक के नहीं बैठ रहे। मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से गुजारिश है कि अगले 3 साल खामोशी के साथ जाए नमाज मसला बचा के सर पे टोपी रखें, हाथ में तस्बीह पकड़ें और जितने सियासी गुनाह किए हैं, इंतजामी गुनाह किए हैं, मुआशी गुनाह किए हैं और रच के किए हैं आपने, उन सारों की माफी मांगो। उम्मीद पे दुनिया कायम है, 2023 तक का इंतजार करें। इसी सूरत हाल में बाबर रवान साहब का कहना था कि अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो शहबाज शरीफ जिम्मेदार होंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब हमें वक्त देने का। फवाद साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो हमसे सवाल पूछना चाहेंगे कि कल जो अपोजिशन में हुआ, यानी एक तरफ कराची में बारिश हो रही है, 1.5 करोड़ आबादी सेंसस के मुताबिक और 2.5 करोड़ यहाँ के लोकल पॉलिटिकल क़यादत के मुताबिक इसकी आबादी है, तो उस आबादी का एड्रेस हम समझ रहे थे कि शायद ऐवान में भी इसके मुतालिक बात हो, लेकिन ऐवान में इसके मुतालिक किसी ने बात नहीं की। इवन जो कराची से जो इलेक्टेड नुमाइंदगान वहाँ हैं उन्होंने भी बात नहीं की। बिल्कुल शफात, और साथ में आजकल जो बात और जो सबसे ज़्यादा जो इशू ज़ेर बहस है वो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पाकिस्तान वापस कैसे लाया जाएगा, बिकॉज ही वाज देयर। आप देखिए शफात, टाइम कितना बीत गया हुआ है, ये 8वां महीना भी 2020 का ख़त्म होने वाला है, लेकिन समहाउ अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इलाज हुआ नहीं। और वफाकी वज़ीर, हम कोशिश करें कि फवाद चौधरी साहब से इस हवाले से बात करें, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मुतहरिक इस हवाले से। उन्होंने लेटर भी लिखा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और उन्होंने कहा था कि मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जो हालत है वो भी जो देखने में लग रही है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। वो कॉफ़ी पीते नजर आ रहे हैं, वो वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, सो इसलिए दिल को तसल्ली होती है दैट ही इज़ फाइन एंड ही कैन कम बैक। मतलब उनकी आई एम श्योर शफात, उनके कारकुन जो उन पे जान निछावर करते हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं इनका। कल जनाब इमरान खान की ज़ेर क़यादत, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत काबीना इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला ज़ेर गौर आया। काबीना अरकान ने कहा कि बीमारी का सर्टिफिकेट दिखाकर भागने वालों को अब कोई बीमारी नहीं है। काबीना में नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए हर मुमकिन इक़दामात पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे बन गई, ये मामला पार्टी की क़यादत और रहनुमाओं की जानिब उठाया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से नाराज़ हैं। वफाकी वज़रा मुशीरों ने रिपोर्ट्स को जाली करार दिया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मामले की लेबॉर्ट्री से भी तहकीकात की जाएंगे। और फवाद चौधरी ने कहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद गायनकोलॉजिस्ट है, नवाज शरीफ को कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनकोलॉजिस्ट के पास हो, लिहाजा यास्मीन राशिद से भी तहकीकात होनी चाहिए। यास्मीन तो गायनकोलॉजिस्ट था और मुझे नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था जिसका हल गायनकोलॉजिस्ट के पास हो। दूसरी जो सूरत है कि ताहिर शमसी साहब क्या कह रहे हैं या बाकी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, सवाल ये है कि क्या ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जो जहाज में पहुंचते ही बिल्कुल बदल गई? क्या ऐसी कंडीशन थी जो लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ साहब एक खंडरे लड़के का रूप धार गए और सड़कों के ऊपर जो है उन्होंने अटकेलियां करनी शुरू कर दी? ये प्रोब होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जाहिर है उस प्रोब का हिस्सा होंगी। क्या वो रिपोर्ट्स जिनकी बुनियाद के ऊपर ये फैसले किए गए, क्या वो रिपोर्ट्स जेन्युइन थी? अब जब लग रहा है वो रिपोर्ट जेन्युइन नहीं थी। दूसरी जानिब यास्मीन राशिद ने जवाब दिया है कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट की 100 बार इंक्वायरी करा लें। फवाद चौधरी डॉक्टर नहीं है, इसलिए रिपोर्ट को समझना उनके लिए मुश्किल होगा। फवाद चौधरी नंबर 1 इज नॉट अ डॉक्टर और बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको इस तरह इन्फॉर्मेशन नहीं पता जिस तरह मुझे पता है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें ना फज हो सकती हैं ना सिम्टम्स फज हो सकते हैं। यास्मीन राशिद ने नैब पर भी मेडिकल रिपोर्ट्स की जिम्मेदारी डाली थी, जिस पर नैब ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं और ज़राए ये कहते हैं कि नैब में जो तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर जो हैं वो भर्ती होते हैं, मगर डॉक्टर्स की भर्ती का निज़ाम मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ के नैब में दौरान हिरासत भी हुकूमत पंजाब के डॉक्टर्स ड्यूटी पर रहे। तफ्तीशी अफसरान डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए नैब पर तनकीद का कोई जवाज़ नहीं है। ये मौक़िफ़ सामने आया है ज़राए का। अभी तक की सारी इसी हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्रीज के जो है रिजल्ट्स नहीं थे, बल्कि बड़ा पैनल बैठा था। डॉक्टर फैसल के हवाले से बात हुई थी। हाँ। डॉक्टर फैसल जो कि अब इस वक्त माशाल्लाह काबीना का हिस्सा वज़ीर सेहत है, उनके हवाले से बात हुई थी, क्योंकि उन्होंने तस्दीक की है कि मियां नवाज शरीफ की हालत वाकई ख़राब है। फिर प्लस
جب نواز شریف صاحب کو اسپتال جب لایا گیا تھا تو اس وقت پلیٹلیٹس کے ایشو سے زیادہ ان کا انجائنا کی تکلیف کا مسئلہ تھا، کیونکہ ایک ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا انہیں آلریڈی، جس کی تصدیق بھی کی تھی وہاں موجود کئی ڈاکٹرز نے۔ اور آلسو شفاعت جو کہ پینل بنایا گیا تھا ڈاکٹرز کا، وہ سرکاری پینل تھا، اور اس میں پھر ایک میاں محمد نواز شریف کے بھی ڈاکٹرز کے لیے بولا گیا تھا کہ جن کے ڈاکٹرز کو بھی ایڈ کیا جائے۔ لیکن مدیہ جس طرح سے نواز شریف صاحب نے ریکور کیا ہے اور جس طرح وہ لندن میں پھر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کے جو نمائندگان ہیں وہ بہرحال پریشان ہیں تھوڑا بہت، اور وہ تھوڑا بہت اس حوالے سے ذرا وہ آئی بروز ریز کریں کہ ذمہ داری کس میں ڈالیں۔ بالکل شفاعت، اور ٹیسٹ رپورٹ سے بھی کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ لاہور میں ARY نیوز کے نمائندے خصوصی نعیم حنیف، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ نعیم یہ بتائے گا کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس اصلی ہیں یا جعلی، یہ کیسے بن گئی؟ یہ معاملہ وزراء نے بٹھایا ہے تو ایک پنڈورا باکس ہی کھل گیا ہے، اس حوالے تک آپ تک کیا اپڈیٹس پہنچ رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی اسی طرح سے جیسے مریم نواز جو ہے وہ ایک کیس میں پیشی بھگتنے گئیں، تو آج وہ کیس بالکل بھی جو ہے وہ الماری میں چلا گیا اور وہ اس کیس پر ڈسکشن ہی ختم ہو گئی۔ اب یہ ہو رہا کہ وہ کس طرح آئیں اور ان پر کیا کیس بنتا ہے اور ادارے پر کیا کیس بنتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ چودھری شوگر مل کیس میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی سزا معطل کر دی گئی تھی، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں مشروط ضمانت ان کو دی گئی، جس کی گارنٹی جو ہے ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب نے بھی دی۔ اس میں طریقہ کار یہ طے پایا تھا کہ جو ہے اس کیس میں وہ اپنی میڈیکل رپورٹس جو ہیں باقاعدگی سے باہر سے جو ہے وہ بھجوائیں گے پنجاب حکومت کو، اور پنجاب حکومت جو ہے ان کی جو ضمانت میں توسیع ہے اس کا فیصلہ کرتی رہے گی، اور وہ کورٹ کو اپنی ریکمنڈیشن دے گی، اس پر ضمانت ملتی رہے گی۔ اب پنڈورا باکس یہ کھل رہا ہے کہ وہ جن رپورٹس کی بنیاد پر ان کو ضمانت دی گئی کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بہت ہی کم رہ گئے تھے اور ان کی زندگی کو خطرہ تھا، ان رپورٹس کو ہی جو ہے خود حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان جو ہے وہ مبینہ قرار دے رہی ہے، جعلی قرار دے رہی ہے۔ جب میں تھوڑا سا یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ ذمہ داری پنجاب حکومت کی تھی۔ پنجاب حکومت کے زیر نگرانی ایک میڈیکل بورڈ قائم کیا گیا، جس پر پنجاب کے جو ہے وہ بڑے نامور جو ہیں وہ ڈاکٹرز شامل کیے گئے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں صوبائی وزیر صحت ہیں، وہ ان کی نگرانی کر رہی تھی، اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کچھ دن پہلے، آپ سے قطع کلامی کی معذرت، کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب موجود تھے، ہم نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا یہ ریلیونٹ نہیں ہے، میاں نواز شریف اب ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی نواز شریف صاحب کی واپسی کو لے کے بڑی سنجیدہ، بڑی اٹیمپٹ کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا حکومت کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف کا لندن میں رہنا ان کے سیاسی نیریٹو کے اگینسٹ ہے، ان کو سیاسی نقصان ہو سکتا ہے نواز شریف کے لندن میں رہنے سے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل زبان زد عام ہے۔ یہ پاکستان کا ایک عام شہری بھی یہ سوال کرتا ہے، کیا کراچی میں سیوریج کا مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا کراچی کے نالے صاف ہو گئے؟ کیا ملک میں بے روزگاری ختم ہو گئی؟ ملک میں مہنگائی ختم ہو گئی؟ کرپشن لوٹ مار ختم ہو گئی؟ سٹریٹ کرائم جو ہے قتل و غارت ختم ہو گئے؟ کیا صرف اور صرف پاکستان کا مسئلہ اب نواز شریف کو واپس لانا یا ان کی میڈیکل رپورٹس کو جعلی یا اصلی قرار دینا ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کچھ دن پہلے یہ کہہ دیا کہ نیب کی چونکہ کسٹڈی میں تھے تو نیب کی ذمہ داری ہے ان کی صحت کے حوالے سے جو بھی ان کے پلیٹلیٹس گرے، اور وہ نیب جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس وہاں پر ٹھیک نہیں تھا، جبکہ نیب، مجھے ان کی بات سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ نیب کوئی احتساب کا ادارہ نہیں، شاید کوئی ہسپتال ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر تحقیقاتی آفیسر موجود نہیں ہے۔ اب نعیم صاحب اب یاسمین راشد صاحبہ کا آپ نے ذکر بھی کر دیا، یاسمین راشد صاحبہ سے تو اب خفا ہو گئے ہیں، کافی قیادت کے بڑے بڑے لوگ خفا ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے وہ جو تبدیلیوں کا ہم ذکر سن رہے ہیں کہ جی عید کے بعد تبدیلی آنے والی ہے، بڑی عید کے بعد جو پنجاب میں شفلنگ ہونے والی ہے کچھ، تو یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے کوئی ایسی خبریں گردش میں ہیں؟ جی بالکل، ملک میں تبدیلی آئے یا نہ آئے، لیکن اب پارٹی میں تبدیلی کی خبریں جو ہیں وہ تو بالکل سامنے آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ اس تمام صورتحال کی نگران جو تھیں وہ صوبائی وزیر صحت جو کہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، ایک ریناؤنڈ ڈاکٹر ہیں پاکستان کی، وہ رپورٹس خود بھی چیک کرتے رہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے شوکت خانم ہاسپٹل کے ڈاکٹر فیصل کو بھی اس کی نگرانی کی ہدایت کی، وہ بھی آئے، انہوں نے بھی اس بورڈ کی نگرانی کی، رپورٹس کو چیک کیا۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صرف اکیلی نہیں تھی جو کہ تمام تر سچویشن کو مانیٹر کر رہی تھی، اور بہت سارے لوگ تھے، پینلز جو تھے اس میں اتنے بڑے ڈاکٹرز شامل تھے، اور ساتھ میں بڑی بڑی لیب سے ریزلٹس آتے تھے، تو کیا اب کچھ تفتیش کی جائے گی اور ان تمام تر لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے گا؟
जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के तर्जुमान जो हैं शहजाद अकबर, उन्होंने कुछ दिन पहले लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शहबाज गिल उनके साथ थे, फयाज चौहान उनके साथ मौजूद थे। उस वक्त उन्होंने ये अनाउंस किया कि वज़ीर आज़म की हदायत पर अब इस बात की तहकीक शुरू होगी, इस बात की जो है वो तफ्तीश की जाएगी कि ये रिपोर्ट्स कहाँ से तैयार हुई। सर्विसेज हॉस्पिटल के वो जो डॉक्टर महमूद अयाज हैं उनका क्या कंसर्न है। मैं छोटी सी बात जाते जाते आपको बताता जाऊँ कि ये रिपोर्ट्स तो बनी अभी भी एक बहुत बड़े मुल्ज़म सर्विसेज हॉस्पिटल में जुडिशल होने के बाद वो पड़े हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी इसी तरह से तैयार करके जो है वो जेल हुकाम को रोजाना की बुनियाद पे भिजवाई जा रही हैं कि उनकी हालत बड़ी खराब है। और सेम केस जो है वो इधर भी हुआ। तहकीकात का शहजाद अकबर साहब ने देखें, वो तो जाहिर है कि मैं तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं वो भी इस बात के जिम्मेदार हैं, पंजाब के वजीर सेहत जो हैं उन पर जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि उनकी निगरानी में सारा कुछ हुआ। ये तो आप किसी पे ब्लेम गेम कर ही नहीं सकते, किसी पे इल्ज़ाम तराशी कर ही नहीं सकते, ये तो आपने सारा कुछ खुद किया धरा है। और शहजाद अकबर साहब से सवाल किया हमारे नुमाइंदे ने कि जी फिर वो कैसे चले गए अगर रिपोर्ट भी जाली थी और उनकी सेहत भी ठीक थी, तो उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब महकमा ज़राअत से पूछा जाए। तो वो ज़राअत का महकमा तो देखें आबपाशी है, ज़राअत है, वो तो जो है उसमें काफ़ी काम उन्होंने बात में वजाहत की, उन्होंने कहा कि जी वो है जो नवाज शरीफ की फैमिली के हवाले से उन्होंने कहा कि जी ये वो महकमा ज़राअत है, उन्होंने बताया बाद में। जी बिल्कुल, वो बाद में उन्होंने जो बिल्कुल हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हमें इतना शऊर नहीं है, तो बाद में उन्होंने उसकी तस्दीक कर दी थी कि ये कौन सा। और एक मेरे पास और भी इतला है कि जो बात जितनी कि मैं कर सकता हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो वालदा मोहतरमा हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनका बहुत बड़ा रोल है जो है उनको बाहर भिजवाने में। उनकी ही ख्वाहिश पर और किसी जगह उनकी ही दरख्वास्त पर नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया गया। और एक और भी इतला आ रही है कि खुदा ना खास्ता कुछ दिन बाद शायद नवाज शरीफ साहब की तबीयत कुछ नासाजी की खबरें आएंगी, जिसके बाद वो अपना इलाज इस शर्त पर शुरू करवाएंगे कि जब तक उनकी बेटी मरियम नवाज लंदन नहीं पहुंचेंगी वो अपना ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर से नहीं करवाएंगे। जब तक उनकी बेटी नहीं जाती लंदन वो अपना इलाज नहीं कराएंगे। बहुत शुक्रिया जी। नईम मनीफ हमारे खुसूस हमारे साथ मौजूद थे। और शफात अब ये देखें कि अब माशाल्लाह से इसी इंतजार में मेरे ख्याल से साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तबीयत तो बेहतर भी होने लगी है, वॉक कर रहे सड़कों पर, कॉफ़ी पी रहे हैं, वो एंजॉय करें मेरे ख्याल से। लेकिन अब शफात आई फील सॉरी फॉर द जो उनके कारकुन हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अब इतना टाइम हो गया है, वो कारकुन की वजह से कोरोना की सूरत हाल में बाहर आ जाते हैं इनके लिए फ़ाइट करने के लिए, और वो तरस गए कि कब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, क्योंकि आना तो एट द एंड ऑफ द डे अपने मुल्क में ही है ना। आगे बढ़ते हैं जनाब, और ज़रा एक अहम ख़बर की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में पनाहगाहों में सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाए जाने के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने लाहौर में 10 नई पनाहगाहें बनाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने कहा कि पनाहगाहों के नए मॉडल का दायरा कार मरहलावार दीगर शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा और पंजाब पनाहगाह अथॉरिटी तश्कील देने की भी असूली मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला ने कहा है कि मुनशियात के आदी अफराद और गदागरों के लिए बहाली मराकज़ कायम कर रहे हैं और वज़ीर आज़म की क़यादत में फलाही रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलेंगे। जी, और अब आपको कराची की सूरत हाल के हवाले से बताएं कि कराची में आज बारिश 11 बजे शुरू होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ये कह रही है कि शहर में कहीं दरमियानी और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है और शहर में ये सिस्टम मज़ीद 24 घंटे मौजूद रहेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मलीर नदी के मुतासरा इलाकों का दौरा। DC चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मलीर नदी से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध ने मारवी गोट पहुंचकर लोगों से तफसीलात भी ली और वज़ीर आला सिंध को आगाह किया गया कि खोई गोट से 22 और दसानो शनों से 30 लोगों का इनखला हुआ है। हसन पिनहोर गोट से 56 अफराद का इनखला मुकम्मल हो गया। हर मदीना टाउन और यार मोहम्मद गोट में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को फौरी लोगों को निकालने की हिदायत की और कहा है कि लोगों को खाना और पानी पहुँचाएँ, इनको अकेला ना छोड़ें। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। कराची का बिलावल
कहां है? पानी में डूबे कराची वाले ढूंढ रहे हैं बिलावल भुट्टो के कराची के वादों को। बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो के कराची के जो वादे थे वो ये तमाम तर वादे बारिश में बह गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा था कि कराची का बिलावल कराची के हुकूक की आवाज़ उठाता रहेगा। कराची वाला हूँ मगर कराची का हाल बद से बदतर हो गया है। हर सड़क हर गली बिलावल भुट्टो को पुकार रही है। ठीक है, अब कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची सिर्फ वो काबिल कबूल होगा जो कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आएगा, और मुशावरत से एडमिनिस्ट्रेटर नहीं लगाया गया तो बात खराबी की तरफ जाएगी। अहम बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर का ताल्लुक कराची से हो, बाहर से आने वाला काबिल कबूल नहीं होगा। क्या कहा गवर्नर सिंध ने, आपको सुनवाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की भी बात हो रही है, तो क्या कौन आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर आपके इल्म में? अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटर कराची जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स कराची के ताउन से या मुशावरत से नहीं आएगा, ये बात खराबी की तरफ जाएगी। इसमें बेहतरी की गुंजाइश कम नजर आती है मुझे। नहीं, यानी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अगर आ जाएगा तो आप लोगों के लिए काबिल कबूल होगा? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए वो काबिल कबूल हो। जाहिर है कि अगर मुशावरत से आएगा और न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, ऐसा शख्स आएगा जो कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स को काबिल कबूल होगा, कराची में रहने वालों को समझ आएगा कि हाँ ये है। और नंबर 1 चीज इसमें यह है कि उसका ताल्लुक कराची से होगा। वो बाहर से आने वाला जो है वो शायद काबिल कबूल ना हो। जनाब, ये मामलात हैं कराची के कि एडमिनिस्ट्रेटर हो तो कराची से हो, बाहर से आने वाला कबूल नहीं है। सारे स्टेक होल्डर्स का मुत्तफिक होना ज़रूरी है, तो ये तो फिर ना वाली बात हुई ना। इसका मतलब है तो फिर होना ही नहीं है काम। इसका मतलब है काम लंबा चला गया। मतलब बहू ऐसी चाहिए जो डॉक्टर भी हो और शादी के बाद जॉब भी ना करे, और रोटी भी गोल बनाए, और मतलब जो है ना उसके अंदर सारे गुण हो जितने वो चाहिए होते हैं, लेकिन वो हो भी कराची की। लेकिन अल्लाह करे तमाम तर स्टेक होल्डर्स कराची के लिए कराची का एडमिनिस्ट्रेटर ले ही आए जिसको कराची का थोड़ा बहुत दुख और दर्द तो हो। खैर जी, हमने देखा कि कराची में जैसे ही बारिश होती है तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली गायब हो जाती है। के इलेक्ट्रिक के 370 फीडर्स और 40 PMTs ट्रिप हो गई। बेशतर इलाकों में तो तार टूट गए और सब स्टेशन बंद होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। शहर का 30% हिस्सा अंधेरों में डूबा हुआ है और शहर के मुतादिद इलाके 12 घंटे से बिजली से महरूम हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं के इलेक्ट्रिक के ही हवाले से। के इलेक्ट्रिक का जो बिजली फराहमी का निज़ाम है, उनके मुताबिक जब बारिश होती है तो के इलेक्ट्रिक के खंभों पर जो तनसीबात हैं उनकी वजह से खंभों में और बिजली की तनसीबात के इर्द करंट आने का अंदेशा होता है। लिहाजा उन इलाकों में जहाँ के इलेक्ट्रिक के खंभों पर तनसीबात नज़म है वहाँ बिजली मुअत्तल कर दी जाती है। बिल्कुल, जिस हवाले से हमने रिपोर्ट तैयार की है सर आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब अब बात करते हैं ये जो सिंध में बारिशें हुई हैं, इससे जहाँ एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच रहा है, वहाँ इंडस्ट्री को भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और हम बात कर रहे हैं कॉटन इंडस्ट्री की। कॉटन की फसल तैयार थी और अब चुनाई का मरहला शुरू होने वाला था, लेकिन जब ये बारिश का सबसे बड़ा स्पेल आया है अब तक के आने वाले सारे स्पेल्स में, और बारिश में कुछ इलाकों में 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है, तो उसकी वजह से कई कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज जो हैं अब वो मुश्किलात का शिकार। बिल्कुल शफात, और इस बार कपास की पैदावार 30 टन तक रहने के अंदाजे थे, लेकिन बारिशों से कपास की चुनाई बेहद मुतासर हुई है और इसके अलावा जो कपास का म्यार है वो भी काफ़ी हद तक जो है ख़राब हुआ है, जबकि मजमूई मुल्क की पैदावार में भी कमी का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और म्यारी रुई की दस्तियाबी महदूद होने से रुई की कीमतों में भी इजाफे के साथ साथ मुल्की बरामदात भी इससे मुतासर हो सकती हैं। और इसी वाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन कॉटन जिनर फोरम जनाब हक साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। एहसान साहब, क्या बारिश ही एक ऐसी वजह बनी है जिसकी वजह से कॉटन जिनिंग जो इंडस्ट्री है वो इतनी मुतासर हुई है? तो इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है, जो करंट इशू है, वो तो बारिशें ही है। सिंध में बारिशें जो बहुत ज़्यादा हैं और अनएक्सपेक्टेड हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो कॉटन जिनिंग की जो फैक्ट्रीज हैं वो वहाँ पे पैदावारी अमल सस्पेंड हो गया है। और हमारी, आपके इल्म में होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स, आजकल कॉटन एक्सपोर्ट्स बहुत बेहतर हो रही थी। तो ये खदशा है कि अगर बारिशें ये थोड़ा सा और चलें तो इससे जो है कॉटन इंडस्ट्री और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं ये थोड़ी इस पर इफेक्ट हो सकता है। अच्छा, कितना नुकसान होने का खदशा है? 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन से ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। 30 टन
ये मैडम कहना अभी कबल वक्त होगा। सिंध में जो मेजर हमारे जो कॉटन जोन है, सांगड़ है, मीरपुर खास है, हैदराबाद है, वहाँ पे तो बारिशें काफ़ी दिनों से हो रही हैं और आज भी हो रही हैं। तो ये बारिशें ख़त्म होने के बाद ही सही आइडिया हो सकेगा कि कॉटन की जो क्रॉप है वो कितनी डैमेज हुई है। और अभी जो रहीमा खान है, साउथ पंजाब है, यहाँ भी बारिशें हो रही हैं। तो मैं ख्याल ये बारिशें ख़त्म होने के बाद ही हम सही एस्टिमेट कर सकें कि कितना लॉस हुआ है। एहसान साहब, ये बारिशों का सिलसिला अगस्त में भी है, सितंबर भी बड़ा वेट मंथ है, काफ़ी ज़्यादा बारिशें होनी हैं। तो क्या अभी तक असेसमेंट के लिए आप लोगों की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, क्योंकि बारिशें ख़त्म होने में काफ़ी टाइम है? विश्वास है उसमें इशू ये कि जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, ये इतना अपडेटेड नहीं है। इसकी जो फोरकास्टिंग होती है वो 100 टाइम जो है वो करेक्ट नहीं होती, और अगर करेक्ट होती है तो ये काफ़ी दफ़ा ये हुआ कि ये कहते हैं 1 वीक होंगी, 2 वीक होंगी। तो ऐसे इनकी जो है फोरकास्टिंग है वो करेक्ट नहीं होती है पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की ना। सही। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, इस पर सबसे ज़्यादा इशू ही मेट डिपार्टमेंट का है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल के दौरान या 2-3 साल के दौरान पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो वेदर कंडीशंस हैं वो चेंज हो रही हैं। जहाँ जिन महीनों में पहले सर्दियाँ पड़ती थी वहाँ गर्मी हो रही हैं, और गर्मी वाले महीनों में सर्दियाँ हो रही हैं। तो मेट डिपार्टमेंट को चाहिए, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट चाहिए कि मेट डिपार्टमेंट को हर हाल में अपडेट करे, ताकि प्रॉपर फोरकास्टिंग हो सके, और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उस पर कुछ प्रॉपर उसे कुछ उसके मुताबिक अपनी वो सारी एक्टिविटीज़ कर सके। सही। अच्छा, अब एहसान साहब ये भी बताइएगा कि ये मेट डिपार्टमेंट की तरफ से चलें ब्लेम चला गया, लेकिन अगर चुनाई मुतासर हो जाती है, जो फुट्टी है वो ज़ाया हो जाती है, तो क्या कोई तरीका है कि किसी तरह से इस नुकसान को रिकवर किया जा सके? ऑलरेडी हमारी कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही है, कॉटन इंडस्ट्री हमारी, तो कोई तरीका है कि इसको थोड़ा इनिशिएटिव अभी से लिया जा सके? नहीं, मेरा ख्याल है ये बहुत मुश्किल है। जो हमारी कॉटन जो है पुट्टी जिसे हम कहते हैं, वो अगर बारिशों से उसका जो क्वालिटी डैमेज हो जाएगी तो उसकी तो रिकवरी नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली फिर हमें दोबारा इंपोर्ट पे जाना पड़ेगा, और आपको पता है कि डॉलर की प्राइस आजकल बहुत ज़्यादा है। तो हमारी इंपोर्ट जो बहुत कॉस्टली है, इंपोर्ट कॉस्टली होगी तो हम जब उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर हम उसको दुनिया की जो दीगर कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉटन को, उनसे हम मैच नहीं कर सकेंगे। तो काश्तकारों को ये चाहिए कि जब बारिश हो रही हो तो कपास की चुनाई बिल्कुल ना करें, और ख़ासतौर पे जो खेतों से बाहर जो पानी जाने वाले रास्ते हैं उनको साफ रखें, ताकि बारिशें जैसे ख़त्म हो तो पानी बाहर चला जाए। तो इस किस्म के मेजर्स लेने पड़ेंगे फार्मर्स को, और जो हमारे मेजर्स बड़े ज़रूरी हैं जी, और ख़ास तौर पर बारिशों के दौरान चुनाई इम्पॉसिबल है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे एहसान उल हक साहब, जो कि चेयरमैन हैं कॉटन जिनर्स फोरम के। बिल्कुल जी शफात, और आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है कि मुहर्रम हराम का ये महीना है, और इसमें कोशिश की जा रही है कि जो असरदार हैं उनकी सिक्योरिटी के, जहाँ पे जल्द से जुलूस निकाले जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो इसी हवाले से पेशावर पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी में एक कदम और आगे निकल गई है। मुहर्रम हराम में जुलूसों की सिक्योरिटी अब ऐप के ज़रिए मॉनिटर की जाएगी, और इस बारे में मज़ीद जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान तारिक से। जी अदनान। पुलिस ने मुहर्रम हराम के हवाले से हसास रूट, हसास एरिया, हसास इमाम बारगाहों और शहर के मुख्तलिफ दाखिली और खारजी रास्तों के हवाले से जहाँ पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं, वहीं पर एक जदीद ऐप जो है वो भी तैयार की गई है। SP सिटी हमारे साथ है। सर, इस ऐप के हवाले से बताइएगा कितनी ज़रूरी है ये ऐप, और इस ऐप में क्या क्या फ़ीचर्स हैं? जी, ये पेशावर कैपिटल सिटी पुलिस ने एक ऐप डेवलप की है जिसमें तमाम शहर के जितने जलूस हैं, जितनी इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, जितनी मजालस की जगह हैं जिसमें इमाम बारगाहें हैं, ये सर्टन घर हैं जहाँ पे मजालस हो रही हैं, जितनी सबील शहर में लगाई जाती है, वो तमाम हमने इस मैप पे प्लॉट कर दिए हैं। इसके साथ साथ हमारा अपना जो डिप्लॉयमेंट का प्लान है, जितने गन पॉइंट्स लगेंगे, जितने शहर में नाकाबंदियाँ होंगी, ब्लॉकिंग पॉइंट्स होंगे, वो तमाम चीज़ें भी इस ऐप में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसमें हमारी नफरी का तमाम डेटा है, और जदीद सर्वेलेंस के निज़ाम के लिए जो 109 कैमरास लगाए गए हैं मुख्तलिफ रूट्स पे, वो तमाम इस मैप में रूट्स पे प्लॉट हुए नज़र आते हैं। जब भी किसी कैमरा पे हम क्लिक करते हैं तो उस पर जहाँ भी रूट होगा, जहाँ पे जुलूस पहुंचा होगा, वो हमें नज़र आएगा। इसी तरह तमाम सिक्योरिटी प्लान जो है उसको इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। हमें अपनी यहाँ मेन कंट्रोल रूम में बैठे तमाम अपने यहाँ पता होगा कि किस इमाम बारगाह पे कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, किस जुलूस को कौन लीड कर रहा है, जुलूस कहाँ पहुँचा है। तो इट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ सर्वेलेंस जो कैपिटल सिटी पुलिस की एक एफर्ट है। सर, मातमी जुलूस शुरू होने और ख़त्म होने की टाइमिंग के हवाले से बताइएगा, और साथ साथ हसास रूट, हसास इमाम बारगाह
कितनी है और उसके रूट्स को इस मैप के हवाले से कितना फ़ायदा मंद होगा? जी, हमने कुछ 39 ट्रबल पॉइंट्स हैं जो आइडेंटिफाई किए। इसमें जब भी जुलूस ट्रबल पॉइंट के करीब होगा तो इसके अंदर सिस्टम में ये एक चीज़ रखी गई है, तो उसके करीब जो भी कैमरा होगा वो ऑटोमेटिकली जुलूस को दिखाएगा कि जुलूस इसके करीब पहुंच गया। जो वहाँ पे खड़ा हमारा पुलिस अफसर होगा उसको बीपर मिलेगा और सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो जाएगी। तो ये मैकेनिज़्म ऑफ सर्वेलेंस है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसपी सिटी जो इस ऐप के हवाले से बता रहे। पेशावर पुलिस ने मुहर्रम अल-हराम की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए जो है वो जो जदीद मैप जो है वो तैयार किया, जिसमें हसास रूट, हसास इमाम बारगाह और उसके साथ साथ पल पल की अपडेट जो है वो इस ऐप के ज़रिए जो है वो अफसरान ले सकेंगे। जी, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब बाखबर सवेरा में। और गाड़ियों की चोरी रोकने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट इस्लामाबाद ने जदीद इकदाम उठा लिया है और अब कर रहे हैं वो गाड़ियों की ई टैगिंग। बिल्कुल जी, ई टैगिंग करने का फैसला कर लिया गया है और एक्साइज डिपार्टमेंट के मुताबिक खुफिया प्लेट गाड़ियों के शीशों में लगेगी और ये जदीद निज़ाम रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए गाड़ी का खोज लगाएगा। एल्यूमिनियम शीटिंग के ज़रिए नया नंबर सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जाएगा जिसमें कई फीचर्स होंगे। जी जनाब, अब आपकी गाड़ी का जो मेन स्क्रीन, जो विंड स्क्रीन होगी, उसके ऊपर एक चमचमाता सा RFID वाला एक एल्युमिनियम का छोटा सा एक टुकड़ा लगा हुआ होगा जो आपकी गाड़ी की शनाख्त होगा। अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है तो उस RFID के जरिए आपकी गाड़ी जो है वो पकड़ाई देगी। ये भी हो सकता है कि आपकी गाड़ी की वो जो नंबर प्लेट है, आपके पास मिसाल के तौर पे सेडान गाड़ी है, पता चले कि वो जो आपकी RFID किसी बस पे लगी हुई है, तो ये अहम मुमकिन है, लेकिन पॉसिबल है या नहीं। हम ज़रा बात करते हैं इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है जनाब डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन बिलाल आजम साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब हमें वक्त देने के लिए। बिलाल साहब, पहले तो ये बताइएगा, ये RFID उसी तरह काम कर रही है जैसे हम बता रहे हैं, इसमें कोई और फीचर्स भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, RFID के हवाले से ये एक न्यू आइडिया है जो कि हम इस्लामाबाद में जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और इससे ये होगा कि एक तो गाड़ी की रूटीन में जो प्लेट्स हैं कि 2 प्लेटें हम रूटीन में पाकिस्तान में यही यूज़ हो रही है, लेकिन चूँकि मॉडर्न दुनिया में बहुत ज़्यादा एक न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो हमने कहा क्यों ना हम भी इनिशिएट कर दे, जिसमें ये है कि ये RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक ई टैग जो है वो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और वो आपकी गाड़ी के विंड स्क्रीन पे होगा, जिससे आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन उस टैग में मौजूद होगी और उसमें आपकी गाड़ियों के टोकन का प्लस उसके अलावा सारा डाटा और जो भी ट्रांजैक्शन गाड़ी के हवाले से हमारे डेटाबेस में होगी तो इस टैग में ऑटोमेटिकली सारा डाटा जो है वो अपडेट होता जाएगा। सही बिलाल तो साहब, तो ये जो ई दूसरी टैगिंग का बात ये है प्रोसेस कि है ये कितना एक्सपेंसिव होगा और साथ में ये बताएगा इसका एग्जैक्टली ये लॉन्च कब कर दी जाएगी सर्विस? एक्चुअली बाकी तो हम MOU इनिशियल जो है वो हम साइन कर चुके हैं, लेकिन चूँकि कुछ अप्रूवल्स होती है वो फ़ाइल हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को फॉरवर्ड कर दी है जो कि इंशाल्लाह जल्दी अप्रूव हो जाएगी। तो वंस इट गेट्स अप्रूव तो उसके बाद हम अनकरीब इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। हमारी ट्राई ये है कि विद इन दिस ईयर जो है हम ये इंट्रोड्यूस कर लें, तो इंशाल्लाह ये पाइपलाइन में है और अनकरीब हम शहरियों को ये फैसिलिटी दे सकेंगे। अच्छा, ये जो ई टैगिंग सर्विस है ये मोटरवे की जानिब से भी है और उसमें भी सारी जो गाड़ियां हैं वो यूजुअली इस टैग को यूज़ करती हैं मोटरवे के जो टोल प्लाजाज हैं वहाँ से ज़रा हसल से बचने के लिए। तो कोई ऐसा प्लान है कि ई टैगिंग को M टैग के साथ मुंसलिक कर दिया जाए ताकि लोगों को गाड़ी पे बहुत ज़्यादा स्टिकर्स ना लगाने पड़े? एक्चुअली ये फ्यूचर में हो सकता है, वाई नॉट हो सकता है, लेकिन हम इसको अभी इस हवाले से देख रहे हैं कि हम अपना जो है हमारा इस्टेब्लिश हो जाए कंट्रोल रूम्स, और दूसरी बात ये कि इसके जो भी डिटेक्टेबल एंटीनाज है प्लस रीडेबल डिवाइसेस है जिसमें हमारा ये मेन कंसर्न तो हमारा यही होगा कि जो गाड़ी है वो जेन्युइन है और जो यूज़ हो रही है वो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। अब बिलाल साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, गाड़ी चोरी होती है, 15 मिनट के अंदर गाड़ी पुर्जे हो जाती है और हर पार्ट जो है वो चोर बाज़ार में बाद में अलग अलग कीमतों पर दस्तयाब होता है। ये जो टैग है ये स्क्रीन से रिमूवेबल तो नहीं होता, तो ये जो गाड़ियाँ इस किस्म के स्पेयर पार्ट्स उठाती हैं उनके लिए परेशानी का बायस हो सकता है?
جی بالکل، آپ کا بڑا بیسک کویشچن ہے. میں آپ کو ابھی اگر بتا دوں کہ ایون ابھی تو ہم نے کچھ بھی RFID ٹیگ اور یہ انٹروڈیوس نہیں کرا ہے، لیکن رائٹ نو ابھی بھی کوئی 25 to 30 ویکلز اللہ کا شکر ہے ہم ریکور کرا کے ریئل اونرز کو پولیس کے تھرو ہم دلوا چکے ہیں، جو کہ بالکل برانڈ نیو گاڑیاں تھی جو چوری ہو چکی تھی. اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ جب بھی ٹیکنالوجی کا یوز آپ کرتے ہیں اپنے سسٹم میں اور اس کی آپ انٹیگریشن کرتے ہیں آف ڈیٹا بیسز، تو وہ آپ کو بڑا فائدہ دیتی ہے. وہ ہم نے پولیس کا جتنا سینٹرلائز سسٹم ہے اس کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہوا ہے اپنے ڈیٹا بیس کے ساتھ. تو جب بھی کسی گاڑی پہ FIR ہوتا ہے یا اس طرح کے ایشو ہے اور وہ ہمارے پاس کسی ٹرانزیکشن کے لیے گاڑی آتی ہے تو اسی ٹائم ہمارا ڈیٹا بیس اس کو روکتا ہے. پلس اس کے علاوہ جو گاڑی چوری ہوتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چور جو ہوتے ہیں وہ اس گاڑی کے چیسس نمبر کو ٹیمپرڈ کراتے ہیں. تو ہم نے اپنے سٹاف کی ٹریننگ کروائی اس حوالے سے، اور ہم نے ڈیورنگ ٹرانسفر اور ڈیو رجسٹریشن گاڑیوں کی فزیکل چیکنگ جو ہے وہ ہم نے مینڈیٹری کر دی. تو اس میں ہم نے کافی جو ہے وہ کم دنوں میں ہم نے بہت بڑی ریکوری کی. اور ایون ہم یہ پنجاب پولیس کو کوئی مور دین 20 ویکلز برانڈ نیو جو چوری ہوئی تھی وہ ہم نے ریکور کرا کے ان کو ہینڈ اوور کر دی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون وداؤٹ RFID اللہ کا شکر ہے ہم نے یہ رزلٹ دیا ہے، لیکن ونس جب RFID ہوگا تو اس میں ڈیفینیٹلی ہم گاڑیوں کی ٹریکنگ جو ہے وہ کر سکیں گے، جس سے ہم گاڑی کو ٹریک کر سکیں گے کہ گاڑی کی لوکیشن کیا ہے. اور وہ جب ونڈ اسکرین پہ انسٹال ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ اتنا ایزی نہیں ہوگا ٹو ریموو اٹ. یہ تو بڑا ایزی ہو جائے گا شفاعت لوگوں کے لیے جب آپ اتنی مہنگی گاڑیاں خریدتے ہیں تو اس کے بعد کیونکہ اکثر آپ کے ٹریکنگ سسٹم کام نہیں کرتے، اور اگر یہیں سے ٹریکنگ سسٹم مل جائے دیٹ از گوئنگ ٹو اسٹے لائک ریئلی لانگ، تو وہ مددگار ثابت ہوگا. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم یہ جو RFID کے ذریعے ٹوکنز ریڈ وغیرہ کرنے کا جو سسٹم ہے اس کے لیے بہت سارا جو ہے وہ اکوپمنٹ بھی درکار ہے جو کہ ٹریفک کانسٹیبل کے پاس ہوگا. تو کیا ایسی کوئی اکوپمنٹ جو ہے ان کی پرچیز وغیرہ اور یہ چیزیں کر لی گئی ہیں؟ ایکچولی ہم ٹائم ٹو ٹائم ٹیکنالوجی کو انڈکٹ کر رہے ہیں اپنے سسٹم میں، اور جب بھی ٹیکنالوجی ہم انڈکٹ کراتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا رزلٹ ہمیں فوراً ملتا ہے. تو وہ میں آپ کو کچھ ایک دو مثال دوں کہ ہم نے بایو میٹرک سسٹم کو انٹروڈیوس کرایا بڑا سکسیسفلی، اللہ کا شکر ہے ہم نے انٹروڈیوس کروایا، اور اس کا بڑا رزلٹ ہمیں ملا کہ گاڑیوں میں جتنے فراڈ کیسز تھے وہ سارے رک گئے، پلس اس سے گاڑیوں کی ریونیو میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہو گیا. تو یہ اس کے علاوہ ہمارا پائپ لائن میں ہے ون لنک کے ساتھ عنقریب ہم گاڑیوں کی جتنی فیسز ہے، ٹوکن ٹیکس کا جس طرح آپ نے سوال کیا، اس کے علاوہ گاڑیوں کی رجسٹریشن فی، ٹرانسفر فی، یہ سارے ہمارے ون لنک پہ عنقریب چلے جائے گی فیس. اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی ایپلیکنٹ کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، کدھر بھی ہے. بہت بہت شکریہ جی بلال اعظم صاحب اس ساری تفصیلات سے ہمیں آگاہ کرنے کا، اور یقیناً اسلام آباد کے رہنے والوں کے لیے یہ بڑی قیمتی انفارمیشن ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں صرف اپنی گاڑی کی نا قیمت بڑھانے کے لیے وہ اسلام آباد کی رجسٹریشن لگواتے ہیں. اوہ یس، اسلام آباد کے نمبر کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. یہ میں نے ٹپ دے دی آپ لوگوں کو جاتے جاتے. آگے چلتے ہیں جی. بالکل جی. کہاں جا رہے ہیں شفاعت؟ وہی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں جس سے میں کافی زیادہ افسردہ میں بات نہیں کرنا چاہتی. پاکستان انگلینڈ سے 10 سال بعد ٹیسٹ سیریز ہار گیا، اور ساؤتھ ہیمپٹن میں ہونے والے جو سیریز کا جو تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ تھا وہ ڈرا ہو گیا، اور فالو آن کا شکار ہونے والی قومی ٹیم کا بارش نے کافی زیادہ ساتھ دیا. شفاعت جی جناب، ٹیسٹ میچ کا پانچویں روز اگر بارش نہ ہوتی، دھوپ ہوتی تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل تھا. میچ شروع ہونے کے کچھ دیر بعد ہی پاکستان کی 2 مزید وکٹیں گر گئیں اور 128 پہ 4 کھلاڑی آؤٹ تھے. صرف 27.1 اوور کا کھیل کل ہوا. اگر 90 اوور کا پورا ہوتا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ ان دی اینڈ قومی ٹیم نے دوسری اننگز میں 4 وکٹوں پہ 127 رنز بنائے، اور بابر اعظم 63 رنز بنا کر نمایاں رہے. بالکل جی. اور جیمز اینڈرسن نے میچ میں 7 وکٹیں حاصل کیں، اور جو اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں بابر اعظم نے کوئی 2000 جو ہیں وہ رنز بھی اس حوالے سے کیے تھے، اور ٹیسٹ کرکٹ میں 2000 کیونکہ اپنے رنز مکمل کر لیے ہیں. تو بابر اعظم نے انگلینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میں جو ہے ٹام ہنس کو چوکا لگا کر 2000 رنز کا سنگ میل عبور کیا، اور بابر نے 28ویں میچ میں 2000 رنز فائنلی مکمل کر لیے. فائنلی جی انگلینڈ میں ایک بڑا اعتراض آ رہا تھا کہ بابر اعظم نہیں چل رہا، تو جناب اظہر علی بھی چل گئے، بابر اعظم بھی چل گئے، دونوں کھلاڑی ان فارم آ گئے ہیں.
اور ساتھ ہی جیمی اینڈرسن نے جو تباہ کن بولنگ کرائی ہے، 600 وکٹس کمپلیٹ کیے انہوں نے اپنے کریئر کے، اور 600 وکٹس کمپلیٹ کرنے والے ٹیسٹ کرکٹ میں وہ پہلے فاسٹ بالر بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے متیا مرلی دھرن اور شین وان کے پاس، جو کہ دونوں اسپنرز ہیں، ان لوگوں کے پاس یہ اعزاز تھا، لیکن اب جیمی اینڈرسن اس میں شامل ہو گئے، سو کنگریچولیشنز ٹو ہم ایز ویل۔ اور اب پاکستانی ٹیم نے مقابلہ کرنا ہے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا ون ڈے کے میدان میں، اور ساتھ ہی ہوں گے T20 بھی، تو دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے۔ بالکل شفاعت، اور ہم نے آپ کو بارش نے دیکھیے پاکستان کا جو تیسرا والا میچ تھا سیریز کا، ٹیسٹ سیریز کا، اس کو ہارنے تو لیا، لیکن بارش نے سندھ میں بڑی تباہی مچائی ہے۔ دوبارہ سے ذرا سندھ کے حوالے سے بات کریں گے، کیونکہ ابھی مجھے آپ کو تازہ خبر دینی ہے کہ سندھ کے مختلف اضلاع میں سیلابی صورتحال کے بعد سندھ حکومت نے صوبے میں فلڈ ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے فلڈ ایمرجنسی کا نوٹیفیکیشن بھی اسی حوالے سے جاری کر دیا ہے۔ جی جناب، آپ کو بتاتے چلیں کہ سندھ کے مختلف اضلاع میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور بلکہ انفیکٹ صوبے میں کل رات اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مرتضی وہاب نے ٹویٹ بھی کی تھی، لیکن نوٹیفیکیشن اب جاری ہوا ہے، تو چیف سیکرٹری نے اب نوٹیفیکیشن جاری کر دی، اور اب باضابطہ طور پہ رین ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی ہے پورے صوبہ سندھ میں۔ بارش کی صورتحال جاری ہے، اور اس وقت بھی ایز وی اسپیک کراچی میں بارش کا اگلا اسپیل شروع ہو چکا ہے۔ 90% مطلب فون میں بھی دیکھ رہے ہو تو 90% چانسز ہیں کہ 11 بجے سے بارش جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گی، اور پھر 11، 12، 1، 2 یعنی کہ آج کے دن شفاعت کا مطلب ہے کافی زیادہ بارش ہونے والی ہے۔ تو پلیز غیر ضروری اگر آپ کو بہت ضروری کام نہ ہو تو گھروں سے مت نکلیے گا، اجتناب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ شادری آبادری، اللہ حافظ۔